Good morning, students. Online students, good morning. Good morning, ma'am. Everyone is in mood of Shivratri or something else? હજી મંદિરે જવાનું બાકી છે. Sorry? મંદિરે જવાનું બાકી છે. Lecture પછી. Okay. Okay, so let's start today's lecture. Let's do a quick revision of our previous class. What we have seen yesterday? Mobility, yes. In that? Okay. Assessment and then complications of immobility and then crutch walking, canes, hemicanes, quadripods, walkers. All this we have completed. So, what we have completed in assessment of mobility? Always we have to and કેવી રીતે walk કરે છે. Yes. So always first we have to assess mobility before doing any procedure. So how you will assess mobility, online students? When lying in the bed, then Yes. moving in position and Okay, transferring moving in position, then walking with or without assistive device. okay. So first we will check the mobility in lying position, supine position. Then how the client sits in sitting position and then transferring to the chair. So bed से chair में जाने के लिए कैसे move कर रहा है, walk करने के लिए कैसे, उसकी mobility कैसी है while walking using assistive device or without assistive device, कैसी उसकी mobility. So that we will check. Complications of immobility, इसमें first है metabolic. Metabolic complications क्या होगी? Yes, metabolism will get decreased. Calcium resorption. Calcium resorption will increase. GI function Yes. GI functions are impacted. GI सारे functions diminished हो जाएंगे. Endocrine function भी alter हो जाएगा. So endocrine function का main काम क्या है? What? Fluid regulation. Electrolyte balance and blood pressure regulation. So due to immobility, client will experience orthostatic hypotension होगा because endocrine system is not functioning well. Electrolyte imbalance भी हो जाएगा. Metabolic rate usually due to immobility decrease होता है. But if patient is having fever and patient is immobile, then the metabolic rate will increase. increase. Yes. Then calorie and protein deficiency होती है. So क्या होगा? Weight loss. Yes, weight loss होगा पेशेंट को. बॉडी मास भी कम हो जाएगा और पेशेंट की मसल जो है वो भी कम हो जाएंगे. मसल मास जो है, मसल की जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी. पेशेंट वीकनेस एक्सपीरियंस करेगा. कैल्शियम रिसॉर्प्शन से क्या होगा? Bone porous થશે. Yes, bones will get porous due to calcium resorption from the bones. And second thing, Calcium increase in blood to calculation. yes, the workload for kidney increases to exceed that excess calcium. तो किडनी का वर्कलोड बढ़ जाएगा और ऑस्टियोपोरोसिस होगा. बोन्स पोरस हो जाएंगे. जीआई सिस्टम में क्या था? पेशेंट विल एक्सपीरियंस कॉन्स्टिपेशन, Fecal infection, डायरिया. यस. रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी दो मेन कॉम्प्लिकेशंस होगी ड्यू टू इमोबिलिटी? Atelectasis. एटिलेक्टेसिस एंड न्यूमोनिया. यस. तो ये दोनों होगा. लॉन्ग टर्म से इमोबिलिटी की वजह से पेशेंट नॉर्मली कॉफिंग नहीं कर पाएगा, वीकनेस की वजह से, और इनइफेक्टिव कॉफिंग हो जाएगा. सो उससे म्यूकस अंदर ही रहेगा एंड पेशेंट
और न्यूमोनिया हो जाएगा। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में कौन सी 3 मेन चीजें होती है ड्यू टू इमोबिलिटी? Orthostatic Increase or hypertension, Yes. Increase cardiac volume and thrombus formation. Yes, and another thing is orthostatic hypotension. So orthostatic hypotension, increased cardiac workload, and thrombus formation. These are the complications of cardiovascular systems. जब भी पेशेंट ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्यों होता है, वी ऑलरेडी स्टडी की इलेक्ट्रोलाइट एंडोक्राइन सिस्टम नॉर्मली वर्क नहीं कर रहे, उसकी वजह से ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो रहा है. Whenever we are changing the position of client will complain of dizziness, dizziness, lightheadedness, Fainting. fainting. Yes, these are the complaints. Orthostatic hypotension. Oxygen consumption increases. To compensate that, हार्ट को ज्यादा वर्क करना होगा एंड ऑक्सीजन कंजप्शन उसमें डिमांड इंक्रीज हो जाएगी हार्ट के लिए. फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन कैसे होगा? ड्यू टू इमोबिलिटी, सारे प्लेटलेट्स, फाइब्रिन, ब्लड पुलिंग हो जाएगा और वहां पर सब अक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स ऑक्लूड हो जाएगी एंड हार्ट को ज्यादा वर्कलोड करना होगा. मसल्स में क्या प्रॉब्लम होगा? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में मसल्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? protein loss, यस, प्रोटीन लॉस होगा, तो उसकी वजह से मसल मास, बॉडी मास सब कुछ कम हो जाएगा, पेशेंट वीकनेस एक्सपीरियंस करेगा और बॉन वीकनेस की वजह से गिर भी सकता है. स्केलेटल सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे? ऑस्टियोपोरोसिस Osteoporosis patient will experience due to calcium resorption. और what about joint? joints में joint क्या Contract. होंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाएगा. यस, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाएगा. दैट वुड बी परमानेंट. अभी एक बार हो गया, सो इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक. यूरिनरी सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी? दो मेन कॉम्प्लिकेशंस, UTI, यूटीआई एंड रीनल कैल्कुलाई. यस, यूरिनरी स्टेसिस की वजह से पेशेंट इमोबाइल है. टू फील ब्लैडर फील होने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड, बट पेशेंट इज इन लाइंग पोजीशन, so ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करेगा, देयर विल बी यूरिनरी स्टेसिस, उसकी वजह से यूटीआई एंड कैल्कुलाई होती है. एंड अनदर रीजन, पेशेंट इमोबाइल है, सो पेशेंट का फ्लूइड इंटेक भी कम हो गया है, सो डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा, दिस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ यूटीआई एंड रीनल कैल्कुलाई. इंटेग्यूमेटरी सिस्टम में मेन कॉम्प्लिकेशन इज Pressure injury. बेड सोर्स, प्रेशर इंजरी, प्रेशर सोर्स. कहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा आपको? Bone Bone inflammation. यस. साइकोसोशियल कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी? cognitive and sensory dysfunction, कॉग्निटिव फंक्शन इंपेयर हो जाएगा, कोपिंग चेंजेस देखने को मिलेंगे, सेंसरी फंक्शंस भी चेंज हो जाएंगे, इमोशनल रिस्पॉन्सेस भी चेंज हो जाएंगे एंड पेशेंट विल एक्सपीरियंस डिप्रेशन. यस, डिप्रेशन एक्सपीरियंस करेगा पेशेंट. देन क्रच वॉचिंग, तो क्रच वॉकिंग हमने देखा था. So what are the rules, what considerations you have to keep in mind while using crutches? तो accurate measurement होना चाहिए. Plexus. Okay, so first point is to maintain a how much distance, online students? 22 2 to 3 finger distance, yes, between axillary pad and axilla. जो हमारा axilla है और crutches का जो axillary pad है या arm piece है, जो भी है, उसमें 2 to 3 fingers जितना distance रखना है. If the patient is not putting that much of distance, so what is the complication? What can happen? Brachial plexus. Brachial plexus, Yes, damage to the brachial plexus, that is a nerve in the axilla, so वो damage हो जाएगी. Then another rule, accurate measurement होना चाहिए. Elbow should be Okay. flexed. yes, 20 to elbows 30 should be flexed 20 to 30 degrees, and we have to advise the client not to take continuous rest on that axillary bars. Axillary bars, pads जो भी है, उस पर ज्यादा रेस्ट नहीं लेना है. Then हमें कौन से साइड खड़े रहना है? Affected side. Means affected sides mean healthy side. No, જેમાં problem છે. જેમાં problem Yes, છે. the limb which is having problem or injury, so affected side पर हमें खड़े रहना है. और क्रचेस कैसे होल्ड करेगा पेशेंट? साइड्स में और diagonally. Yes, 6 to 10 inches diagonally patient hold करेगा. And
वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट जब भी numbness और tingling sensation हो आर्म्स में, so you have to stop the ambulation. वो क्यों हुआ? Because brachial plexus पर pressure था, उसकी वजह से numbness and tingling sensation हुआ. Then हमने different gates देखे थे. So tell me about 4-point gate. 4-point gate कैसे करना है? First offline students will speak. Which side crutch affected, unaffected? Unaffected side નો crutch. ઈ સાઈડ નો જે ક્રચ હોય લેવાનો પછી રાઈટ જેમ કે લેફ્ટ લેગ માં પ્રોબ્લેમ હોય તો પહેલા રાઈટ ક્રચ લેવાનું પછી લેફ્ટ લેગ લેવાનું પછી લેફ્ટ ક્રચ લેવાનું અને રાઈટ લેગ લેવાનું. Yes, online students, tell me about 4-point gate. How the patient will walk in 4-point gate? જે અફેક્ટેડ લેગ છે ને એનું ક્રચ ફર્સ્ટ, then Sure. left, પછી લેફ્ટ ફૂટ આવશે, હા પછી લેફ્ટ ફૂટ, પછી લેફ્ટ ક્રચ આવશે, then લેફ્ટ. રાઈટ ફૂટ. Okay. And what about 2-point gate? Online students will speak first. 2-point gate में कैसे करना है? પહેલા અફેક્ટેડ સાઈડ આવશે અને સેમ મે બી સેમ ટાઈમ એની Affected side crutch or leg? Crutch. ક્રચ 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 Crutch. Okay. Then અને સેમ ટાઈમે ઓપોઝિટ ફૂટ. yes, good leg and bad crutch. Both will be held together. Then second step, right leg affected है, so मैंने right crutch और left leg दोनों साथ में लिया. Then next thing, क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर? मैंने अफेक्टेड साइड का क्रच एंड गुड लेग मैंने एक साथ फॉरवर्ड किया, देन अनअफेक्टेड साइड का क्रच एंड बैड लेग. व्हाट अबाउट 3-point gate? थ्री पॉइंट गेट कैसे पेशेंट चलेगा? પહેલા એક સાથે બંને ક્રચીસ અને પછી જે પેલો અફેક્ટેડ જે ના હોય લે એ કરો. Yes, healthy leg. So first both the crutches and then healthy leg. So this is how the patient will walk. What how the patient will walk in swing 2 gate? Okay, so patient will first place the crutches and then patient will take a swing. वो झूला झूल के कहाँ तक जाएगा? ક્રચીસ ના પાછળ જ રહેશે, ક્રોસ નહીં કરે. Yes, the patient will put their legs behind the crutch or along with the crutch. Crutches के आगे तो नहीं रखेगा, crutches के पीछे या crutches के साथ में ही रखेगा. And what about swing through gate? સેમ ખાલી ક્રચીસ ને એને beyond રાખશે, crutch ની beyond Yes. leg. So first the patient will put the crutches forward and then patient will take a swing. वो झूला झूल के now the patient will place the leg beyond the crutches. Crutches के भी आगे पैर रखेगा. So that is swing through gate. Understood? Yes. So this is a mnemonic: 2-point gate, 3-point gate, 4-point gate, swing through gate. Then 2 to 3 fingers distance between crutch and axillary. Flexed elbows. Chairs up के लिए क्या mnemonic था? Up with good and down with bad. Yes. So बैठने के लिए कैसे बैठेगा patient? Patient is in standing position. Now patient wants to sit in a chair. So how patient will sit using crutches? Straight રાખવાનું. Yes. Online students, if the patient is having fracture on the left leg, so how a patient will sit? Patient को fracture है या patient को मोच आ गई है left leg में, so patient कैसे बैठेगा? Tell me. બંને crutches left side રાખશે and then right hand ના support થી affected leg છે swing કરીને support થી બેસી જશે and then stand Okay. થવાનું થશે તો both crutches both crutches side માં લાવી દેશે The અને
જે સારો લેગ છે એનાથી સ્ટેન્ડ થઈ જશે. यस. सो पेशेंट को लेफ्ट लेग में इंजरी है, सो पेशेंट क्या करेगा, पहले तो चेयर के आगे जाकर खड़ा रहेगा, देन दोनों क्रचेस है वो लेफ्ट साइड ले लेगा और क्रचेस के सपोर्ट से वो खड़ा रहेगा. राइट लेग तो हेल्दी है और पेशेंट राइट हैंड से चेयर का आर्म पकड़ेगा, राइट लेग बेंड करेगा एंड लेफ्ट लेग स्ट्रेट रखेगा एंड देन पेशेंट विल सिट. नाउ पेशेंट वांट्स टू स्टैंड अप, तो कैसे करेगा, पेशेंट सारा वजन राइट साइड रखेगा बिकॉज राइट लेग इज हेल्दी एंड देन द पेशेंट विल गेट अप. जैसे बैठा था वैसे ही लेफ्ट लेग स्ट्रेट रख के पेशेंट राइट लेग को प्रेशर से गेट अप होगा. देन वो जो दोनों क्रचेस है वो दोनों क्रचेस जो लेफ्ट हाथ में से लेफ्ट साइड रखे थे पेशेंट ने वो लेगा एंड इट विल पेशेंट विल डिस्ट्रीब्यूट ईच क्रच ईच साइड. एक एक क्रच दोनों हाथ में पकड़ के द पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन. पेशेंट को अपस्टेयर्स जाना है तो कैसे जाएगा, what is the sequence, पहले क्या मूव करेगा, then क्या मूव करेगा, थर्ड क्या मूव करेगा. અપસ્ટેરમાં ગુડ લેગ, બેડ લેગ એન્ડ ક્રચેસ. Yes, Now, first good leg. Yes, first good leg, then bad leg, and then crutch. This is the sequence. If patient wants to move downstairs, so what is the sequence? first ફર્સ્ટ crutch, ક્રચ, બેડ લેગ, bad ગુડ લેગ. leg, then Good leg. Yes, first crutch, bad leg, and good leg. So this is the sequence you have to remember. Canes and walkers में mainly आपको क्या, what considerations you will keep in mind? हमें कौन सी साइड खड़े रहना है, अफेक्टेड साइड. क्रच की हाइट, केन की हाइट कितनी होनी चाहिए, एट द लेवल ऑफ ગ્રેટર ટોકાન્ટર. ग्रेटर ट्रोकेंटर, नॉट लेस देन दैट और नॉट मोर देन दैट. उतने लेवल तक होने चाहिए, एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए. નો શુડ બી ફ્લેક્સ. It should be flexed. Where the patient will place the cane, side match. साइड लाइन में, नॉट डायगोनल ऑब्लिकली वो नहीं प्लेस करेगा, साइड में ही प्लेस करेगा. एट 4 to 6 inches the distance is same. और कौन से हाथ में पेशेंट केन पकड़ेगा, અનઅફેક્ટેડ સાઇડ. पर इंजरी तो जिस लेग में है उस लेग में नहीं पकड़ना चाहिए. ત્યાં સપોર્ટ નહીં આપવાનો, જે અનઅફેક્ટેડ છે ત્યાં સપોર્ટ આપીને हाँ, सो अपोजिट सपोर्ट बैलेंस करने के लिए पेशेंट अनअफेक्टेड साइड ही केन यूज करेगा. एंड व्हाट वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट, क्या इंस्पेक्ट करना है, रबर टिप्स. यस, केन की भी और क्रचेस में भी रबर टिप्स आती है, तो जो भी असिस्टिव डिवाइस है, सो सारे असिस्टिव डिवाइस की रबर टिप्स आपको रेगुलरली चेक करनी है, ऐसा आप पेशेंट को बोलो. देन हेमिकेन्स एंड क्वाड्रिपोड्स, सेम थिंग फॉर द हेमिकेन्स एंड क्वाड्रिपोड्स, वो भी एट ग्रेटर ट्रोकेंटर पर लेवल पर होने चाहिए. साइड पे पोजीशन रखोगे आप, अनअफेक्टेड, आप अफेक्टेड साइड खड़े रहोगे और द केन और क्वाड्रिपोड केन्स हेमिकेन्स वो अनअफेक्टेड साइड पर पेशेंट होल्ड करेगा. वॉकर्स में आप पेशेंट के अफेक्टेड साइड पर ही खड़े रहोगे और वॉकर्स आगे होगा, वो पेशेंट के साइड पर नहीं होगा. पेशेंट आगे वॉकर पहले रखेगा, देन कैसे चलेगा पेशेंट, पहले उसने वॉकर रख लिया, देन यस, पेशेंट वॉकर पहले प्लेस करेगा, देन बैड और इंजर्ड लेग पहले लेगा एंड देन अच्छा गुड लेग लेगा, बिकॉज ऑलरेडी वॉकर पर पेशेंट प्रेशर दे रहा है, सो उसके इंजर्ड लेग पर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा और तुरंत ही पेशेंट अपना गुड लेग लेकर बैलेंस कर देगा. So this is how patient will walk. What is the really important point? Which device? Online students. when client use assisted devices to Yes, detect or safety is our first priority when the client is using different types of assistive devices. Then main another thing, We have to understand them, how to use and Yes. verbalize risk explain કરવાનું. yes, we have to make the client understand or we have to demonstrate कि correct use कैसे करना है, 2 point gate, 3 point gate, 4 point gate कैसे करना है, कौन से प्रॉब्लम में कैसे बैठना है, कैसे ऊपर जाना है. सो सब चीज करेक्टली उसका यूज हमें पेशेंट को समझाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है और पेशेंट को भी पता होने चाहिए रिस्क कि कहाँ पर नहीं चल सकते, कैसे वो नहीं कर सकते, स्पेशली वेट सर्फेसिस पर वो यूज ना करे बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ फॉल इंजरी. और थर्ड थिंग
always monitor or check rubber tips or Rubber. rubber bottoms, yes, of assistive devices. Then any doubt in this? No. Okay, so let's start with the third topic, that is skin integrity. Till now we have completed hygiene and mobility. So last topic is skin integrity. What do you mean by skin integrity? Integrity means इंटेक्टनेस. स्किन कितनी अच्छे से कंप्लीट है, इंटेक्ट है. नॉर्मल जैसे हमारी स्किन कैसी इंटेक्ट होती है, सो वो अच्छी है या नहीं, दैट वी आर चेकिंग. The skin is the largest organ in the body and provides protection against disease, synthesis vitamin D, and pursues pain, temperature and touch. स्किन है दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी. पूरी हमारी बॉडी स्किन से कवर्ड है. व्हाट आर द फंक्शंस? तो डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करते हैं. स्किन इज द फर्स्ट बैरियर. डायरेक्ट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन के अंदर से नहीं जा सकते. तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज. इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी. सनलाइट अगर यहाँ से हम एब्जॉर्ब करेंगे देन विटामिन डी सिंथेसिस होगा. पेन परसिवरेंस में भी हेल्प करेगा. टेम्परेचर परसीव करने में भी स्किन हेल्प करती है और टच सेंसेशन में भी स्किन हेल्प करती है. Assessing skin integrity, identifying problems and initiating interventions are important nursing rules. स्किन इंटेग्रिटी हमें असेस करनी है कि स्किन कितनी इंटेक्ट है, नॉर्मल है या नहीं. प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने होंगे और अगर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गए तो इनिशिएटिंग इंटरवेंशंस स्टार्ट करने होंगे. So these are the important nursing roles. ये हमारे roles है. Next, very important point is the Braden scale is an assessment tool used to predict pressure ulcer risk and is often completed as a part of nursing assessment on a routine basis. जैसे पेन असेसमेंट के लिए पेन स्केल है, फेस स्केल है, वैसे ही बेड सोर्स असेसमेंट के लिए देयर इज अ ब्रेडन स्केल. पेशेंट का कॉन्शियसनेस चेक करना हो तो देयर इज अ ग्लासकोमा स्केल, GCS. यस, सो सिमिलर टू दैट अगर हमें प्रेशर अल्सर का रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो देयर इज अ ब्रेडन स्केल. जितना ब्रेडन स्केल का स्कोर कम होगा उतना रिस्क ज्यादा है. जस्ट लाइक सिमिलर टू GCS. GCS का स्कोर जितना कम आएगा इट इंडिकेट्स वर्स्ट थिंग. तो ब्रेडन स्केल में जितना आएगा इट इंडिकेट्स हायर रिस्क ऑफ प्रेशर. जितना स्कोर ज्यादा आएगा इट इंडिकेट्स कि पेशेंट स्किन कंडीशन इज वेरी गुड. आप देखा होगा इट इज अ पार्ट ऑफ नर्सिंग असेसमेंट. जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, वी नो कि ये पेशेंट लॉन्ग टर्म से मेजर सर्जरी है तो बेड रिडन होगा, उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है सो लॉन्ग टर्म से बेड रिडन होगा. सो उसके असेसमेंट में ब्रेडन स्केल इन्वॉल्व ही होता है. आपको डेली ब्रेडन स्केल चेक करना होता है टू आइडेंटिफाई द रिस्क. अगर आप जल्दी रिस्क आइडेंटिफाई कर दोगे तो प्रेशर सोर्स और प्रेशर अल्सर्स आप प्रिवेंट कर पाओगे. So we know that Braden scale is the assessment tool. From that tool we can predict the pressure ulcer risk. कि patient को risk है या नहीं, and it is often completed as a part of nursing assessment on routine basis. Daily आपको Braden scale assessment करना ही होगा patient का. Next is factors affecting skin integrity. कौन से factors हैं जिसकी वजह से skin की intactness, उसकी integrity affect होती है. So first is nutrition. How? So proper nutrition is required to maintain skin integrity and promote wound healing. Skin को intact रखने के लिए, skin की integrity maintain करने के लिए, wound healing promote करने के लिए proper nutrition is required. Vitamins, proteins and trace minerals are important for healing. Healing के लिए vitamins necessary है, proteins necessary है, somewhat minerals are also necessary. If patient is not consuming all this in a balanced manner, so there will be a problem in the skin integrity. Calories are required for cellular support for healing. Patient को calories की भी requirement है जो healing के लिए जो cellular support है, like जो cells damage हुए हैं उसको heal करने के लिए जो भी support चाहिए वो calories में से मिलेगा. Serum albumin is frequently measured as an indicator of nutrition for clients who need support with wound healing. Yes. जो पेशेंट ऐसे है कि उनकी स्किन इंटेग्रिटी अच्छी नहीं है एंड पेशेंट इज माल नरिश्ड,
सो वुंड हीलिंग अच्छे से हो उसके लिए पेशेंट को हम पैरेंटरल न्यूट्रिशन देंगे और एडिशनल न्यूट्रिशन देंगे। सो कैसे आप चेक करोगे? जिसको वुंड हीलिंग के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ी, बाहर से आपने सपोर्ट दिया न्यूट्रिशन के लिए, सो आप करोगे कि पेशेंट को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा है, सो दैट इज अ सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन जो हम नॉर्मल एल्ब्यूमिन चेक करते हैं, दैट इज अ ब्लड टेस्ट, वो चेक करोगे तो आपको पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस पता चलेगा, जो हम एज अ सपोर्ट दे रहे हैं फॉर द वुंड हीलिंग। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next is tissue perfusion. Tissue perfusion is also important for the maintenance of skin integrity. अगर tissue perfusion प्रॉपर नहीं होगा तो उससे भी skin integrity affect हो जाएगी. What is tissue perfusion? Tell me. What is tissue perfusion? Oxygenated blood supply. Blood supply of the tissue. Oxygenated blood supply to the tissues, that is called as tissue perfusion. So oxygen is required for healing. कोई भी इंजरी हो, स्किन में इंटेग्रिटी ब्रेक हो गई हो, so उसके लिए हीलिंग के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. Client with diabetes mellitus and poor tissue perfusion are at increased risk of impaired skin. That is the concept. Okay. So client with diabetes mellitus and poor tissue perfusion are at increased risk for skin integrity and delayed wound healing. जिसको डायबिटीज है, जिसको प्रॉपर टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रहा, प्रॉपर टिश्यू परफ्यूजन, पुअर टिश्यू परफ्यूजन का कौन से कंडीशन है? लाइक पेशेंट को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, कोई आर्टीरियल डिजीज है, कुछ भी ऐसे डिजीजेस है जिसकी वजह से प्रॉपर टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा या फिर टिश्यू परफ्यूजन पुअर हो गया, तो ये दोनों क्लाइंट्स को ज्यादा रिस्क है स्किन इम्पेयर होने का, स्किन की इंटेग्रिटी इम्पेयर होने का और वुंड हीलिंग डिलेड होने का. देयर इज अ रिस्क. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज infection. Infection is also affecting the skin integrity. How? The inflammatory phase of the wound healing process is prolonged in the presence of infection, delaying the wound healing process. We know कि आपको कोई भी इंजरी होगी या whenever there is any foreign object in your body, our body will create inflammatory response for a healing purpose. आपको कुछ भी इंजरी होगी तो तुरंत ही वहां पर इंफ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. नॉर्मली वो इंफ्लामेटरी प्रोसेस थोड़े टाइम के लिए होती है एंड देन सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है. बट अगर पेशेंट को ऑलरेडी इन्फेक्शन है, सो हमारी बॉडी को पता है कि दिस इज इन्फेक्शन. टू ट्रीट दैट इन्फेक्शन इंफ्लामेटरी प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा. इंफ्लामेटरी फेज खत्म हो जाए देन दूसरा फेज स्टार्ट हो, ऐसे नॉर्मल हीलिंग होता है. बट इन्फेक्शन की वजह से वो इंफ्लामेटरी फेज खत्म ही नहीं हो रहा. सो इंफ्लामेटरी फेज बहुत लंबा चल रहा है, उसकी वजह से वो हीलिंग डिले हो गया. सो इनडायरेक्टली इन्फेक्शन की वजह से इंफ्लेमेटरी फेज बहुत लंबा चला और हीलिंग डिले हो गया. Indications for infections include redness in the tissue, pain, fever, changes in the volume of character of wound drainage, purulent drainage and odor. कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को वहां पर इंसिजन और वुंड पर इंफेक्शन है? सो पेशेंट की वो जो स्किन है, जो जहां पर इंफेक्शन हुआ है, दैट इन्वॉल्व एरिया विल बिकम रेड. फिर पेन होगा, पेशेंट को फीवर आएगा, जो भी डिस्चार्ज हो रहा था उसके वॉल्यूम में भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा डिस्चार्ज का, या फिर कैरेक्टर चेंज हो जाएगा. पहले सीरो सैंग्विनियस और सैंग्विनियस डिस्चार्ज था, नाउ द डिस्चार्ज हैज बिकम प्यूरुलेंट. सो उसके कैरेक्टर में भी चेंज हो जाएगा और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, बैड ओडर आपको आएगी. सो दिस आर द इंडिकेशन, साइन एंड सिम्टम्स को आपको पता चलेगा कि पेशेंट को इन्फेक्शन है. नेक्स्ट इज एज. एज इज ऑल्सो अ फैक्टर जिसकी वजह से स्किन इंटेग्रिटी में प्रॉब्लम हो सकता है. सो विथ एजिंग इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड वुंड हीलिंग मे बी डिलेड. जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ेगी वैसे वैसे जो इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है वो डिले हो जाता है, वो कम हो जाता है. नॉर्मल इन हेल्दी इंडिविजुअल आपको कोई भी माइनर भी चोट लगेगी तुरंत इंफ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा.
बट जो ओल्डर पीपल होते हैं उनमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स तुरंत स्टार्ट नहीं होता, इट इज डिलेड, एंड उसकी वजह से वुंड हीलिंग भी डिलेड हो जाता है ड्यू टू एज। मेडिकल डिवाइसेस, कोई ऐसे स्पेसिफिक मेडिकल डिवाइसेस हो जिसका यूज करके प्रेशर इंजरीज का रिस्क बढ़ सकता है। सो लेट्स सी बॉक्स 16.5 कैसे कौन से मेडिकल डिवाइसेस है और इक्विपमेंट्स है जिसकी वजह से स्किन इंटीग्रिटी अफेक्ट होती है और प्रेशर इंजरीज के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। एनजी ट्यूब होगी तो वी नो कि वो नोज में से डाल के ऐसे टेप लगाकर हम ऐसे बिहाइंड द ईयर स्टिक कर देते हैं, सो इट क्रिएट्स द प्रेशर, उसकी स्किन ब्रेक डाउन होगा, इट कैन कॉज द प्रेशर इंजरी। एंडोट्रेकियल, नेजोट्रेकियल और ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब्स, वो ट्यूब्स की वजह से भी होता है। नेजल कैन्यूला जो भी हम ईयर्स पर करेंगे। नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सो NIPPV और बाईपेप जो मास्क यूज करते हैं पेशेंट में, आपने देखा होगा कि दे आर होल्डेड टुगेदर विद अ बकल, वो लॉक वाला सिस्टम होता है मास्क में। सो कंटिन्यूअसली पहनने की वजह से यहाँ पर नोज पर, चीन पर, ईयर्स पर, वहां पर भी प्रेशर इंजरीज हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। ड्रेनेज ट्यूबिंग अगर लगाई होगी पेशेंट को सर्जरी के बाद तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर और फीकल रिजर्वायर, पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर ऑलरेडी लगाया है, सो इन द पेरिनियल एरिया वहां पर स्किन ब्रेकडाउन हो जाएगी। फीकल रिजर्वायर मींस इलियोस्टोमी बैग, कोलेस्टोमी बैग। यस, कोलोस्टोमी बैग, इलियोस्टोमी बैग, वो रिजर्वायर बैग। सो उसमें भी हमने वो चैप्टर में देखा था कि रेगुलरली पेशेंट की स्किन असेसमेंट करनी होगी बिकॉज फीकल मटेरियल से कंटिन्यूअसली वहां पर स्किन के कांटेक्ट में रहेगा, सो देयर विल बी अ ब्रेकडाउन इन द स्किन। ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस यूज हो गए, लाइक प्लास्टर कास्ट किया है, क्रैप बैंडेजेस यूज किए हैं, या कुछ भी ऐसे ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस लाइक स्प्लिंट्स बांधे हैं टू फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। सो कंटिन्यूअसली हम ओपन ही करके देखेंगे ही नहीं, वहां पर ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, सो देयर विल बी ब्रेकडाउन इन द स्किन। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स अगर यूज कर रहे हैं हम एंड वी आर नॉट चेकिंग द स्किन, तो उससे भी कंटिन्यूअस वी नो कि हम जब भी ऐसे सब डिवाइस यूज करते हैं तो उसको फ्रीक्वेंटली रिमूव करके वी हैव टू डू द असेसमेंट ऑफ स्किन। इफ वी आर नॉट डूइंग असेसमेंट इट कैन कॉज प्रेशर इंजरी। इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस और रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन भी आप यूज करते हो तो उससे भी स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है, देयर आर रिस्क, दैट्स व्हाई वी आर फ्रीक्वेंटली रिमूविंग इट आउट। हम उसको रिमूव करते हैं, थोड़ी देर के लिए स्किन को रिलैक्स होने के लिए टाइम देते हैं, बिकॉज दिस इंक्रीजेस द रिस्क, प्रेशर इंजरी के रिस्क ये सारे डिवाइसेस से बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज इमोबिलिटी। वी नो, हमने आगे ही पढ़ा था कि इमोबिलिटी की वजह से स्किन इंटेग्यूमेट्री में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दैट इज द प्रेशर इंजरी। इनकॉन्टिनेंस, व्हाट इज इनकॉन्टिनेंस? इनवॉलंटरी यूरिन पास आउट। Yes, incontinence in urine, incontinence in feces. Patient involuntarily urine pass कर रहा है frequently, means feces pass कर रहा है, so frequent passage of urine और feces की वजह से जो perineal area है उसमें भी problem हो जाएगा। So these are the 7 factors जिसकी वजह से skin integrity में problem हो रहा है, the skin integrity gets affected. Any doubt in this? नो मैम। Okay, so let's start about wound classification. कि wound कैसे types के होते हैं। wound means any scar or any injury. wound is doesn't mean कि आपको लगने से जो injury हुई है that is only wound. wound means surgical incision भी आप लगा रहे हो, that is also called as wound. So a wound results from disruption of the function and integrity of the body tissues. wound क्या मतलब, wound कहाँ से आया, क्यों हम उसको wound बोल रहे हैं? So जो नॉर्मल फंक्शन था, जो नॉर्मल इंटेग्रिटी थी, इंटेग्नेस थी आपके बॉडी के टिश्यूज की, उसमें डिस्ट्रप्शन हो गया है, तो दैट इज अ वुंड। वुंड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ स्किन इंटेग्रिटी, कॉज ऑफ द वुंड एंड सीवियरिटी ऑफ द इंजरी और डैमेज। हम वुंड्स कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये वुंड ऐसा है, ये वुंड ऐसा है? सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ स्किन इंटेग्रिटी। स्किन की इंटेग्रिटी कैसी है, बहुत डीप स्किन की इंटेक्टनेस अगर इम्पेयर हो गई है, सो वी कैन कॉल इट एज अ डीप वुंड। सो डिपेंडिंग ऑन दैट स्किन इंटेग्रिटी का स्टेटस कैसा है, वुंड इज क्लासिफाइड डिफरेंटली। कॉज ऑफ द वुंड क्या है, लाइक कोई इंजरी, फ्रैक्चर, सर्जरी, कैसे वुंड कैसे क्रिएट हुआ है, सो डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ वुंड देयर आर डिफरेंटली classified in different terms, and severity
ऑफ द इंजरी और डैमेज, कितना सीवियरली वो डैमेज हुआ है या इंजरी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी देयर इज अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड. Classification is divided. So another types of classification is divided into onset and duration. Next, wound कैसे classify होता है कि onset क्या है? What is onset? Any starting point कि wound कब हुआ? When is the onset? Time period कब हुआ? So onset और duration के according भी उसे classify करते हैं, like acute wound है या chronic. Acute है means अभी sudden onset हुआ है और short period के लिए है, so that is acute. Chronic means onset is long and duration is also long, बहुत लंबे टाइम से है, so that is chronic wound. हीलिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी उसको क्लासिफाई करते हैं कि कितना हील हो रहा है, कितना जल्दी हील हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू हीलिंग प्रोसेस इट इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी और फर्स्ट वुंड, सेकेंडरी और सेकेंड वुंड, टर्शियरी और थर्ड इंटेंशन वुंड. सो दिस आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ वुंड. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वुंड हीलिंग. सो वुंड हीलिंग कैसे होता है? ओल्ड स्टूडेंट्स, कितने टाइप से होगा वुंड हीलिंग? There is a natural process and there is by intention. और नेचुरल जो प्रोसेस है उसमें वुंड हीलिंग के फेजेस है. तो देर आर 3 फेजेस: इंफ्लामेटरी फेज, फाइब्रोब्लास्टिक फेज एंड मैच्योरेशन फेज. मेक श्योर कि कभी भी आपको कुछ भी इंजरी हो, बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मल हो, सो बॉडी विल फर्स्ट क्रिएट द इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स. सो फर्स्ट फेज इज इंफ्लामेटरी. इंफ्लामेटरी begins at the time injury 3 to 5 days. जैसे ही पेशेंट को इंजरी होगी, सर्जरी करके आपने इंजरी की है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुंड. तो जैसे ही पेशेंट को इंजरी होगी तुरंत ही इंफ्लामेटरी फेज स्टार्ट हो जाएगा. और कितने दिन तक इंफ्लामेटरी फेज चलता है? इंफ्लामेटरी फेज लास्ट फॉर 3 to 5 days. 3 से 5 दिन तक इंफ्लामेटरी फेज रहता है. Okay. Manifestations include local edema, pain, redness and warmth. Inflammatory process हो रही है वहां पर, so there will be swelling. So edema, pain होगा, redness होगी और warmth होगा. So these are the localized sign and symptoms or manifestations. कि जहां पर भी inflammatory reaction हो रहा है, there will be local edema, pain, redness and warmth. Second phase is fibroblastic phase. Fibroblastic phase क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है? Begins the 4th day after the injury. ये 3 से 4 दिन तक था, तो इंजरी हुई है तुरंत ये फेज स्टार्ट हुआ है. उसके बाद 4th दिन से फाइब्रोब्लास्टिक फेज स्टार्ट होगा. 4 दिन तक इंफ्लामेटरी फेज था, 4th डे पर फाइब्रोब्लास्टिक फेज स्टार्ट हुआ. It begins the 4th day after injury and lasts 2 to 4 weeks. 2 से 4 वीक तक वो फाइब्रोब्लास्टिक फेज ही रहता है. Scar tissue forms and granulation tissue forms in the tissue bed. वहां पर scar tissues बनने स्टार्ट हो जाएंगे and there will be a formation of granulation tissue. Granulation tissue means हीलिंग बतावे ने कैसे स्टार्ट yes, हुई. जो आपको कभी भी इंजरी होती है तो उसके ऊपर ब्राउन एक अलग से लेयर हो जाता है. व्हाट इज दैट? सो दैट इज अ ग्रेन्युलेशन टिश्यू. वहां पर डिफरेंट प्लेटलेट्स, फाइब्रोब्लास्ट और वो सब मिलकर अक्यूमुलेट हो गए हैं एंड दे आर स्टार्टिंग द हीलिंग. वो जो डिप्रेस्ड पोर्शन या उतना कुछ इंजरी हुआ है तो उसको नॉर्मल करने के लिए वहां पर ग्रेन्युलेशन टिश्यूज फॉर्मेशन हो जाता है. सो ये 2 से 4 वीक तक वैसा ही रहता है. सो दिस इज द फाइब्रोब्लास्टिक फेज. नेक्स्ट इज last stage, that is maturation phase. Maturation phase begins early as 3 weeks because 2 to 4 weeks तक तो फाइब्रोब्लास्टिक फेज था. नाउ मैच्योरेशन फेज कब स्टार्ट होगा? आफ्टर 3 weeks. पेशेंट को इंजरी हुई थी उसके 3 वीक बाद स्टार्ट होगा मैच्योरेशन फेज एंड इट मे लास्ट फॉर 1 year. 1 साल तक भी रह सकता है. एंड क्या होता है मैच्योरेशन फेज में? स्कार टिश्यू बिकम्स थिनर एंड इज फर्म एंड इलास्टिक ऑन पाल्पेशन. आपने देखा होगा कि आपको कोई इंजरी हुई है, ग्रेनुलेशन टिश्यू फाइब्रोब्लास्टिक फेज होकर खत्म हो गया, जो वो ब्राउन ऊपर जो ग्रेनुलेशन था वो निकल भी गया है, बट स्टिल देयर इज अ स्कार. और वो स्कार धीरे 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 हील होगा. 1 साल तक वो आपको स्कार दिखेगा, धीरे 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 वो थीन होता जाएगा स्कार एंड इट विल डिसअपियर. बट सम इंजरीज आर स्टिल देयर कि वो स्कार परमानेंट रह जाता है.
इट इज इनइलास्टिक। वो अभी जो टिश्यूज है जहां पर स्कार है वो सारे टिश्यूज नाउ दे आर इनइलास्टिक, उसमें स्ट्रेचिंग कैपेसिटी नहीं है। अंडरस्टूड अबाउट द फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग? यस और Yes, नो? ma'am. ओके। नेक्स्ट इज हीलिंग बाय इंटेंशन। जो हमने फर्स्ट वो फेजेस देखे दे आर नेचुरल, कि कोई भी इंजरी होगी सो ये 3 फेजेस में सारे वुंड्स हील हो जाते हैं। सेकेंड इज हीलिंग बाय इंटेंशन। हीलिंग बाय इंटेंशन मीन्स वी आर मेकिंग द वुंड टू हील फास्टर। हमारे इंटेंशन की वजह से वी वांट कि वुंड फटाफट हील हो जाए, सो इट इज हीलिंग बाय इंटेंशन। उसमें भी फेजेस है, 3 फेजेस, फर्स्ट इंटेंशन, सेकेंड इंटेंशन एंड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सो दिस आर द इंटेंशंस। प्राइमरी इंटेंशंस में क्या होगा? व्हाट वी आर डूइंग, we are doing something man made, it is not natural process. So what we are doing, so wound edges are approximated and held in place, that is with the sutures. वी नो, हम सर्जरी करते हैं, फिर सर्जरी करके हम उसको ओपन भी छोड़ देंगे तो वो खुद से हील हो जाएगा, बट वी वांट कि वो जल्दी हील हो जाए। सो व्हाट डॉक्टर यूज टू डू, वो सूचर्स ले लेते हैं। सूचर्स लेने से जो वुंड एजिस है वो साथ में आ जाएगी, और जो नाउ द वुंड हीलिंग प्रोसेस, जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो वी वांट कि वुंड हीलिंग जल्दी हो जाए, सो वी आर हेल्डिंग इन प्लेस, जो वुंड एजिस है उसको साथ में सूचर से साथ में कर दिया, and then the wound will get healed automatically. So first primary intention में क्या होगा, we are placing the wound edges together by suturing, or healing occurs, wound is easily closed and dead space is eliminated. हमने ऑलरेडी उसका काम इजी कर दिया है। अगर नेचुरल प्रोसेस से आप देखोगे सो इट विल टेक टाइम, कि पूरी जो स्पेस है उसको फिल अप करना है, एंड इट विल टेक टाइम। सो टाइम जल्दी फटाफट हीलिंग हो जाए इसलिए हमने सारी एजेस साथ में रख के सूचर्स कर दिए, एंड देन वो फटाफट अभी हील हो जाएगा, और जो डेड स्पेस है वो जल्दी फील हो जाएगी। सो दिस इज द प्राइमरी इंटेंशन और फर्स्ट इंटेंशन। सेकेंड इंटेंशन में क्या करेंगे हम, दिस टाइप ऑफ हीलिंग occurs with injuries or wounds that have a tissue loss and requires gradual feeling of the dead space with connective tissues. सेकेंड टाइप का इंटेंशन हम कब यूज करते हैं, सो ऐसी कोई इंजरी हुई है, ऐसा कोई वुंड है जिसमें टिश्यू लॉस हुआ है, लाइक पेशेंट को खड्डा ही हो गया है, उतने टिश्यूज डैमेज ही हो गए हैं, पूरे निकल गए हैं, सो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। सो उसमें फीलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, आपने देखा होगा प्लास्टिक सर्जरी, लाइक उसमें टिश्यू फीलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। सो ऐसे सब टिश्यूज है उसमें फीलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, एंड इट विल टेक more time compared to the primary intention. एक बार वो थोड़ा थोड़ा heal हो जाए then doctors will take the sutures. So this is the secondary intention. Tertiary intention और third intention में क्या होगा, this type of healing involves delayed primary closure and occurs with wounds that are intentionally left open for several days for irrigation or removal of debris and exudates. Once debris has been removed, the inflammation resolves and the wound is closed by first intention. ये जो बहुत सीवियर टाइप की इंजरी होती है और जो इन्फेक्टेड हो गई है, देयर इज सो मच ऑफ डेड सेल्स, डेब्रीज, डेब्रीज मींस वेस्ट, सो बहुत सारे डेब्रीज है, एक्सुडेट्स है। सो वुंड, ऐसे जो टाइप के वुंड होते हैं उसको डॉक्टर ओपन ही रखते हैं। आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट को ऐसे नेक्रोसिस हो गया हो या फिर बहुत ही डीप बेड से हुआ है तो डेली उसका ड्रेसिंग और इरिगेशन होता है। सो वी आर कीपिंग दैट वुंड ओपन, उसको डेली ड्रेसिंग करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए बहुत दिनों तक हमने वो वुंड ओपन ही रखा, और एक बार सारी डेब्रीज, सारे एक्सुडेट क्लीन हो गए, देन वी आर टेकिंग द सूचर्स। जो फर्स्ट इंटेंशन वाला था वो हमने ले लिया, फर्स्ट इंटेंशन के लिए हमने जो सूचर्स ले लिए, नाउ द वुंड विल हील बाय हिज ओन। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, सो दिस इज द हीलिंग बाय इंटेंशन। पहले नॉर्मल वुंड था तो हमने सर्जरी सूचर्स लेके वुंड की एजेस साथ में जोड़ दी, तो हीलिंग फास्ट हो गया। सेकेंड टाइप के इंटेंशन में क्या था कि वुंड को थोड़ा टाइम लगेगा, देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू लॉस ज्यादा है, सो उसमें फीलिंग होगा। सो आपने थोड़ी डीप इंजरी थी, सो देयर विल बी अ फीलिंग, और उसमें फीलिंग करने के बाद नेचुरली वो वुंड हील हो जाएगा।
टर्शियरी में क्या है कि वुंड इतना बड़ा सीवियर है, इतना ज्यादा सीवियर है कि आपको वुंड ओपन ही रखना होगा, उसमें से डेब्रीज एक्सुडेट सब रिमूव करना होगा, डेली इरिगेशन ड्रेसिंग करना होगा। एक बार सारी डेब्रीज और इरिगेशन हो जाए, मतलब एक्सुडेट्स रिमूव हो जाए, नाउ यू कैन गो फॉर द फर्स्ट इंटेंशन, नाउ यू कैन टेक द सूचर्स और वुंड एजेस साथ में रख देनी है, देन द वुंड विल गेट हील्ड on his own. Next is types of wound drainage. This is important. Online students, old students, tell me how many types of wound drainage are there? Tell me the types. Yes, which are they? serous, Serous, and yes. then purulent. Serous, serosanguineous, sanguineous, and Sang- purulent. And one another type of drainage that we have seen in integumentary, that is hemorrhagic. Hemorrhagic is also there. So let's see box 16.6 types of exudate. Exudates means drainage, discharge from the wounds. कितने types का exudate निकलता है, discharge निकलता है wound का? So first is serous drainage. Serous drainage कैसे पता चलेगा, वो कैसा होगा? So जब आप देखोगे, आपको कभी भी इंजरी होती है तो आपने देखा होगा उसमें से पानी जैसा निकलता है, so that is a serous drainage. क्लियर और स्ट्रॉ कलर एंड वाटरी, एकदम क्लियर होगा या फिर थोड़ा स्ट्रॉ कलर होगा, लाइक थोड़ा लाइटली पिंकिश होगा, और पिंक से भी बहुत कम पिंकिश होगा, दैट इज स्ट्रॉ कलर, और वाटरी होता है. सो दिस इज द नॉर्मल ड्रेनेज. सीरस ड्रेनेज है, दैट इज द नॉर्मल ड्रेनेज. नेक्स्ट इज सीरोसेंग्विनियस. सेंग्विनियस वर्ड इज यूज्ड फॉर ब्लड हियर. सो सीरस तो आपको पता है वाटरी, और उसमें ब्लड है, सो ब्लड कैसा होगा, पेल पिंक एंड वाटरी. दिस इज ऑल्सो नॉर्मल डिस्चार्ज, ये भी नॉर्मल है. अभी अभी सर्जरी की है तो इनिशियल डिस्चार्ज वुड बी सीरोसेंग्विनियस, धीरे धीरे वो सेंग्विनियस होगा. देन थर्ड वन इज सेंग्विनियस. इज इट नॉर्मल और एबनॉर्मल? Abnormal. Abnormal. Abnormal discharge, yes. So sanguineous word is used for blood. So अभी जो discharge है वो बहुत blood वाला है. So red drainage हो रहा है, and this is the abnormal and indicates active bleeding. Bleeding start हो गया है अंदर, जहाँ पे भी सर्जरी का स्कार था या वुंड था, अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है. सो रेड डिस्चार्ज निकल रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज sanguineous discharge. तो इट इंडिकेट्स कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है. अगर सेंग्विनियस डिस्चार्ज आप कंट्रोल नहीं करोगे, सो सेंग्विनियस में से हेमरेजिक हो जाएगा डिस्चार्ज, सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज प्यूरुलेंट. इट इज अगेन एबनॉर्मल डिस्चार्ज. प्यूरुलेंट कैसा होगा डिस्चार्ज? सो देयर विल बी येलो, ग्रे, टैन, ब्राउन और ग्रीन. नॉर्मल कलर से सारे एबनॉर्मल कलर्स हो गए, येलो भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, टैन, ब्राउन, ग्रीन, कोई भी कलर का ड्रेनेज होगा ड्यू टू इन्फेक्शन इन द वुंड, वहां पर इन्फेक्शन हो गया है, so that's why there is a purulent drainage. So it can be asked in examination. आपको डायरेक्टली ऐसे बोलेगा, लिखा गया होगा स्टेटमेंट में कि a patient when you assess the patient there is a serosanguineous discharge, तो आपको पता होना चाहिए कि this is normal और abnormal. उसका कलर कैसा होगा, सेंग्विनियस है तो इट इज एबनॉर्मल और नॉर्मल, सीरस है तो इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल. तो ये डिस्चार्ज के नेम पता होने चाहिए, उसमें कैसा ड्रेनेज होता है. सीरस में क्लियर टू स्ट्रॉ कलर होगा और वाटरी होगा. सीरो सेंग्विनियस में पेल पिंक कलर होगा एंड इट इज अगेन वाटरी. सेंग्विनियस में रेड डिस्चार्ज होगा बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया उसमें. प्यूरुलेंट में अलग अलग कलर्स के होंगे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, टैन, ग्रे, ये सारे डिफरेंट कलर्स है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, एंड देयर विल बी एन ऑर्डर ऑल्सो, बैड स्मेल भी होगी वो वुंड में. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस ड्रेनेज. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, normal are only two. Serous and serosanguineous are normal drainage. Sanguineous, purulent, hemorrhagic, these are the abnormal drainage or exudate. Yes. Next is pressure injury. So let's take a short break. Then we are studying pressure injury. Skin integrity हमने study कर लिया कि what is skin integrity, what are the types of wound classification. So again types of wounds, wound healing कैसे होता है वो हमने देख लिया. wound के drainage कैसे होते हैं different types के, वो हमने देखे. Now after break we will study about pressure injuries, that is the bed sores.
Online students, please come back from break. Should we start now? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay, so let's start about pressure injury. So what is pressure injury? A pressure injury is an impairment of skin integrity. Pressure injury क्या है? So वो जो skin integrity है, जो intactness है जो skin की, वो impaired हो गई है. This is a pressure injury. A pressure injury can occur anywhere on the body. Tissue damage results when the skin and underlying tissues are compressed between the bony prominence and the external surface for an extended period. प्रेशर इंजरी बॉडी पे कहीं पे भी हो सकती है. और वो कैसे होती है? सो टिश्यू डैमेज होता है. कहाँ पर होता है? तो जो स्किन है, बोन्स है, दिस इज अ बोन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बोन. बोन के ऊपर स्किन है और नीचे बेडशीट है या कुछ भी सरफेस है. सो बोन और जो एक्सटर्नल सरफेस है उसके बीच की स्किन कंप्रेस होती है. उसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है एंड बहुत लॉन्ग पीरियड से वो प्रेशर वैसा का वैसा रहेगा. तो उसकी वजह से प्रेशर इंजरी हो जाएगी. So you can see in figure 16.1, these are the different bony prominence जहां पर प्रेशर इंजरी की रिस्क है. फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो कि ऑसिपुट जो बोन है, देयर इज ऑसिपुट बोन जहां पर प्रेशर की वजह से यहाँ पर प्रेशर इंजरी हो सकती है. बिहाइंड द स्कैप्यूला वो भी एक प्रेशर पॉइंट है. जो हिप्स है, जो सेक्रम है, तो वहां पर भी हो सकते हैं. ये जो लोअर पोर्शन है हिप बोन का, वहां पर भी प्रेशर इंजरी हो सकती है. एंड द लास्ट कैलस जो हील बोन है, उस पर भी प्रेशर इंजरी हो सकती है. सो दिस आर द प्रेशर पॉइंट्स. यू कैन सी कि जहां पर भी प्रेशर गिरेगा वहां पर प्रेशर इंजरीज होगी. डिफरेंट पोजिशंस में, ये सिटिंग पोजिशन में, ये साइड लाइन पोजिशन में, ये सुपाइन पोजिशन में है. सुपाइन पोजिशन में दिस आर द पॉइंट्स. और व्हील चेयर में जो पेशेंट बैठेगा, सो द पॉइंट्स विल बी स्कैप्यूला नॉट ऑसिपुट. वहां पर ऑसिपुट नहीं होगा. देन हिप्स हो गए. देन ये जो यहाँ पर जो फ्लेक्स पोजिशन में जो वहां पर जो बोन है उसकी वजह से वहां पर भी प्रेशर इंजरीज होगी और यहाँ पर भी होगी नाउ. सो दिस आर द डिफरेंट पॉइंट्स. डिफरेंट अलग अलग पोजिशन में, लाइन्स, साइड लाइन, सुपाइन, सिटिंग. सो सारी पोजीशन में विच आर द प्रेशर पॉइंट्स जहां पर प्रेशर इंजरी का रिस्क है. So the tissue compression restricts the blood flow to the skin, which can result in tissue ischemia, inflammation, and necrosis. Once a pressure injury develops, it is difficult to heal. Continuously वो pressure था, प्रेशर की वजह से, कंप्रेशन की वजह से ब्लड फ्लो वहां पर रेस्ट्रिक्ट हो गया. नॉर्मल जो ब्लड फ्लो जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है. तो ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो गया, उसकी वजह से वो जहां टिश्यूज थे जो प्रेशर में थे वहां पर इस्केमिया हो गया. व्हाट इज इस्केमिया? डिक्रीज ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई. इस्केमिया की वजह से क्या होता है? तो इट इज कॉल्ड एज सेल डेथ. क्या बोलोगे उसको? इंफाक्शन और नेक्रोसिस. यस. सो टिश्यू इस्केमिया हुआ. इस्केमिया कुछ भी एबनॉर्मल होता है, सो हमारी बॉडी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट करती है. तो इन्फ्लामेशन भी हुआ एंड वहां पर ऑक्सीजन तो इंप्रूव ही नहीं हुआ. अगर वो प्रेशर रिलीज हो जाता तो ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाता, बट वो इंप्रूव हुआ ही नहीं, प्रेशर रिलीज ही नहीं हुआ. सो उसकी वजह से नेक्रोसिस हो गया, वहां पर प्रेशर इंजरी हो गई. अभी जब भी प्रेशर इंजरी हो जाती है, सो उसको हील करने में बहुत ही टाइम लगेगा. इट इज सो डिफिकल्ट टू हील बिकॉज वहां से प्रेशर हटने ही नहीं वाला. एक बार प्रेशर इंजरी हुई है फिर भी वहां पर प्रेशर तो होगा ही. सो इट इज सो डिफिकल्ट टू हील. सो इट इज बेस्ट थिंग टू अवॉइड द प्रेशर इंजरी. प्रेशर इंजरी ना हो, दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज हो जाएगी तो हील करने में बहुत डिफिकल्टी होगी. Next red important point is prevention of skin breakdown in any part of the client body is the primary role of the nurse. We know कि prevention is the best part. Bed sores हो and then heal करो, that is so time taking. So prevention is our best part. So prevent कोई भी skin breakdown कहीं पे भी client के body पे हमें prevent करना है, that is our primary role as a nurse. So prevention is our first role. Risk factors. किसकी वजह से प्रेशर इंजरीज के रिस्क ज्यादा है? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? सो फर्स्ट तो स्किन प्रेशर. स्किन प्रेशर में रहती है, उस पर प्रेशर होता है इसीलिए.
स्किन शियरिंग एंड फ्रिक्शन, जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर इंजरी जल्दी हो जाएगी. इट विल क्रिएट फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर द प्रेशर इंजरीज. इमोबिलिटी, बहुत टाइम से इमोबाइल है, सो उसके भी प्रेशर इंजरी हो सकती है. माल नरिश्ड है, पेशेंट नरिश्डमेंट ही नहीं है, माल नरिश्ड है, मसल ही नहीं है, तो बोनी प्रोमिनेंस और स्किन के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, कुशन ही नहीं है, तो उसकी वजह से हो सकता है. इनकॉन्टिनेंस, फ्रीक्वेंटली यूरिन और फीसिस पास हो रहा है, तो उसकी वजह से भी स्किन ब्रेक डाउन हो जाएगी एंड प्रेशर इंजरीज हो सकती है. डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, थोड़ा डैमेज हुआ है बट पेशेंट को सेंसेशन ही नहीं आ रहा है कि कुछ डैमेज हुआ है, तो उससे ज्यादा हो जाएगा वो डैमेज. तो डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन कैन ऑल्सो इंक्रीजेस द प्रेशर इंजरी रिस्क. दिस आर द रिस्क फैक्टर्स. लेट्स सी द असेसमेंट फाइंडिंग्स कि प्रेशर इंजरी हुई है, so how you will assess and what are the stages of pressure injury. So let's see box 16.7 for assessment and staging. So stage 1 में क्या होता है, you can see the image and description also. ये नॉर्मल इंडिविजुअल का इमेज है एंड ये एक डायग्राम है कि स्किन के जो लेयर्स होते हैं, तो ऊपर से आप ऐसे उसको पीस में कट करोगे तो कैसे दिखेगा, देयर विल बी ओनली अ रेडनेस. ऊपर का लेयर ही डैमेज हुआ है, अंदर सब अभी इंटेक्ट है, इट इज इन हेल्दी कंडीशन. सो स्किन इज इंटेक्ट, स्किन इंटेक्ट है, सिर्फ रेडनेस हुआ है, स्किन में कुछ भी ऐसे स्किन ओपन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है, स्किन इज स्टिल इंटेक्ट. एरिया इज रेड, एरिया जो हो गया है वो प्रेशर की वजह से रेड हो गया है. नॉट पर्पल और मरून, पर्पल की मरून कलर का नहीं है, इट इज ओनली रेड इन कलर. एंड डज नॉट ब्लेंच विथ एक्सटर्नल प्रेशर. ब्लेंच का मतलब क्या, it does not blanch with external pressure. What does this mean? आपको पता है कि Like- दिस इज अ नॉर्मल हैंड. यस, जब मैं प्रेशर ऐसे दूंगी सो इट विल टर्न वाइट. प्रेशर पर वो ब्लेंच हो जाएगा, व्हाइट टर्न हो जाएगा. जैसे मैं प्रेशर रिलीज करूंगी इट विल टर्न रेड अगेन. जस्ट इन नेल्स, मैं ऐसे प्रेस करूंगी सो देयर विल बी अ ब्लेंचिंग. जैसे ही मैं प्रेशर रिलीज करूंगी देयर विल बी नॉर्मल रेडिंग कलर. सो ये जो रेड हो गया है उस पर आप प्रेशर अप्लाई करोगे सो ब्लेंचिंग नहीं होगा, व्हाइट होगा ही नहीं. There is no blanching when we are applying external pressure. May appear differently in people with darker pigmentation. Yes, अगर जो डार्क कलर के होंगे, जिनका स्किन टोन कलर ब्लैक है, सो उसमें रेड नहीं दिखेगा, उसमें थोड़ा आपको डिफरेंट दिखेगा. लाइक साइनोस हो गया हो मरून टाइप का, उसमें वैसा दिखेगा. इट मे अपियर डिफरेंट विथ डिफरेंट कलर इन डार्कर स्किन टोन पीपल. एरिया may be preceded by changes in sensation, temperature और firmness. वो जो एरिया है उसमें थोड़े चेंजेस हो गए, लाइक सेंसेशन में चेंजेस हो जाएगा पेशेंट को, वहां पर आप टच करोगे सो वार्म टच होगा, टेम्परेचर में वहां पर चेंज होगे और फर्मनेस आपको लगेगी, हार्ड लगेगा. सो दिस इज द स्टेज 1. अंडरस्टूड. उसकी साइन एंड सिम्टम्स है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये स्टेज 1 है. आपको अगर एग्जाम में इमेज दिया गया हो कि आपने एक पेशेंट का असेसमेंट किया एंड यू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ प्रेशर इंजरी, सो व्हाट डज दिस इमेज शोज, तो आपको वो इमेज देख के पता चलना चाहिए दिस इज फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज. या फिर ओनली डिस्क्रिप्शन हो कि व्हेन यू आर डूइंग असेसमेंट ऑफ अ स्किन इन अ पेशेंट, you find out that the skin has become red and it does not blanch by applying pressure. सो आपको उसमें पता चलना चाहिए कि ये फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं. सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स. नेक्स्ट इज स्टेज 2. स्टेज 2 में कैसा होगा, सो हियर इज द रियल इमेज एंड साइड में जो है वो आपको डायग्रामेटिक इमेज दिखाया है. नाउ द स्किन इज नॉट इंटेक्ट. अभी पहले स्किन एकदम इंटेक्ट थी, अभी स्किन इंटेक्ट नहीं है, देयर इज समथिंग वुंड, इंजरी हो गई है, नॉर्मल कंप्लीट स्किन नहीं है. पार्शियल थिकनेस, स्किन लॉस विथ एक्सपोज्ड डर्मिस. नाउ स्किन लॉस हो गया है बट पार्शियल लॉस हुआ है. सो फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होता है डर्मिस. सो एपिडर्मिस लेयर निकल गया और आपको डायरेक्ट डर्मिस ही एक्सपोज हो गया, अंदर का जो डर्मिस लेयर है वो एक्सपोज हो गया है. जो वुंड बेड है, जब स्किन इंटेक्ट नहीं होती देन इट इज कॉल्ड एज वुंड. सो जो वुंड बेड है दैट इज वायबल, पिंक, रेड एंड मॉइस्ट. अभी जो इंजरी हुई है ऊपर से स्किन निकल गया, आपको एपिडर्मिस, अभी डर्मिस दिख रहा है डायरेक्टली, सो वो कैसा दिखेगा, एकदम वायबल होगा. वहां पर अभी भी ब्लड सप्लाई सब कुछ अच्छा है, सो इट इज वायबल, इट इज पिंक और रेड इन कलर एंड इट इज मॉइस्ट इन नेचर.
present as an intact or open ruptured serum filled blister. और sometimes ऐसा भी होता है कि उसमें ओपन इंटेक्ट ब्लिस्टर्स हो, ओपन या रप्चर ब्लिस्टर्स हो, सो देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ ब्लिस्टर्स. ब्लिस्टर्स कैसे होंगे? इंटेक्ट होंगे या फिर ओपन और रप्चर टाइप के ब्लिस्टर्स भी हो जाएंगे. सो दिस आर द साइंस ऑफ स्टेज 2 बेड सोर्स और प्रेशर इंजरीज. नेक्स्ट इज स्टेज 3. स्टेज 3 में कैसा होगा? नाउ full thickness skin loss is present with adipose tissue visible in the ulcer. पहले में partial thickness skin loss हो गया है. Now बहुत सारी स्किन का लेयर ही लॉस हो गया है. You can see in the image एपिडर्मिस, डर्मिस, वो सब लॉस होके सबक्यूटेनियस टिश्यू, और ये जो फैट होता है, दिस इज ऑरेंज येलो कलर है, दैट इज एडिपोज टिश्यू. जो फैट होता है पूरा वहां तक चला गया है. सो फुल थिकनेस स्किन लॉस हो गया, सारे लेयर्स स्किन के लॉस्ट हो गए और डायरेक्टली आपको एडिपोज टिश्यू दिख रहा है. अभी जो वुंड था, जो अल्सर, जो गड्ढा हो गया, उसमें डायरेक्टली आपको एडिपोज टिश्यू ही दिखेंगे. ग्रेन्युलेशन टिश्यू एंड रोल्ड वुंड एजेस आर ऑफन प्रेजेंट. जब भी इंजरी होती है, सो वहां पर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो ग्रेन्युलेशन टिश्यूज आपको थोड़े थोड़े दिखेंगे. एंड जो वुंड एजेस है वो रोल्ड हो गई होगी, बिकॉज देयर इज अ पिट, गड्ढा हो गया पूरा. सो सारी जो एजेस होती है, उसकी बाउंड्री होती है वुंड की, वो रोल्ड अप हो जाएगी. यहाँ यू कैन सी कि वुंड में जो इंजरी दिख रही है वो सारी अंदर की तरफ ऐसे रोल्ड हो गई होगी. सो एजेस आर रोल्ड. स्लाउ एंड एस्कार में बी प्रेजेंट. स्लाउ एंड एस्कार मीन्स आपको पता होगा कि ये व्हाइट व्हाइट आपको सब्सटेंस दिख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज स्लाउश. और एस्कार, एस्कार मीन्स नेक्रोस हो जाना, ब्लैक ब्लैक डेब्रिस, गंदा गंदा उसमें दिखेगा. सो इट कैन बी प्रेजेंट. अगर ना हो तो दैट इज गुड थिंग, बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो प्रेजेंट. ये इमेज में यू कैन सी देयर इज अ स्लाउश प्रेजेंट इन द वुंड. अंडरमाइनिंग एंड टनलिंग में भी प्रेजेंट. अंडरमाइनिंग मतलब टनलिंग जैसा, खड्डा पूरा आपको दिखेगा कि देयर इज अ पिट. वो प्रेशर इंजरी इतनी डीप है कि आपको यू कैन आइडेंटिफाई देयर इज अ टनलिंग, टनल जैसा बन गया है, देयर इज अ पिट. सबक्यूटेनियस टिश्यू मे बी डैमेज्ड और नेक्रोटिक. जो सारे जो सबक्यूटेनियस लेयर था, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस, देन एडिपोज टिश्यूज से, तो सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है वो कंप्लीटली डैमेज हो गया है और इट कैन बी अ नेक्रोटिक, उसमें नेक्रोसिस भी हो सकता है. सो दिस इज द स्टेज 3. अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट इज स्टेज 4. स्टेज 4 में अभी क्या होगा? फुल थिकनेस स्किन एंड टिश्यू लॉस विथ एक्सपोज्ड और पाल्पेबल फेशिया, मसल टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज और बोन. पहले उसमें भी फुल थिकनेस था स्टेज 3 में, पर कहां तक था? एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर डैमेज था और नीचे का एडिपोस दिख रहा था. स्टेज 4 में क्या होगा? एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, एडिपोस टिश्यू सब डैमेज हो गया और उसके नीचे जो डायरेक्ट मसल्स स्टार्ट होते हैं या फिर बोन्स, यहाँ पर बोन स्टार्ट हो गए, जहां पर मसल्स हो गए वहां पर मसल स्टार्ट हो गए, जो भी उसके नीचे का लेयर है डायरेक्टली वो ही एक्सपोज हो गया है. फेशिया मीन्स जो भी मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स होते हैं उसके ऊपर जो थीन कवरिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज फेशिया. सो डायरेक्टली आपको फेशिया या फिर मसल्स, टेंडन्स है तो टेंडन्स, लिगामेंट्स है तो लिगामेंट्स, अगर कार्टिलेज है तो कार्टिलेज, और अगर बोन है तो डायरेक्टली बोन, वो ही एक्सपोज हो गया. उतना डीप इंजरी है वो. मे है स्लॉश और एस्कार, उसमें भी स्लॉश और एस्कार दोनों प्रेजेंट होंगे. स्लॉश मीन्स वो जो व्हाइट सब्सटेंस होता है वो, और एस्कार मीन्स ब्लैक कलर का जो डर्टी सब्सटेंस होता है, सो वो भी उसमें प्रेजेंट होगा. रोल्ड वुंड एजेस, अंडरमाइनिंग और टनलिंग में भी प्रेजेंट. वुंड एजेस यू कैन सी इन द इमेज, वो सारी रोल्ड हो गई है, रोल अप हो गई है एजेस, उसकी बॉर्डर. और अंडरमाइनिंग पूरा गड्ढा आपको दिखेगा, टनल जैसा दिखेगा. सो इट इज स्टेज 4. द ओनली डिफरेंस, स्टेज 1 में कैसा होगा? स्किन एकदम इंटेक्ट है, स्किन में कुछ भी इंजरी नहीं है. स्टेज 2 में क्या है? एपिडर्मिस चला गया एंड यू कैन डायरेक्टली सी द डर्मिस लेयर. स्टेज 3 में क्या होगा? एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, तीनों 3 लेयर चले गए हैं. देयर इज द एक्सपोजर ऑफ एडिपोज टिश्यू.
स्टेज 4 में क्या होगा, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, एडिपोज टिश्यू सब डैमेज हो गया एंड देयर इज अ डायरेक्ट विजिबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग टिश्यू that could be muscle, tendon, ligament, cartilage, bone, anything. Understood? Yeah. Okay. Next is unstageable. अनस्टेजेबल नेम ही बोल रहा है कि आप स्टेज नहीं दे सकते कि वेदर इट इज स्टेज 1 2 3 4 कितना स्टेज है. सो दैट इज अनस्टेजेबल. ऑब्कर्स फुल थिकनेस स्किन विथ टिश्यू लॉस. ये टाइप का जो होता है प्रेशर इंजरी, उसमें क्या है कि फुल थिकनेस स्किन लॉस हो गए. फुल थिकनेस स्किन लॉस मीन बहुत सारे लेयर्स लॉस हो गए हैं और टिश्यू लॉस हो गया है, बट आपको पता नहीं चलेगा कि कितना डीप है बिकॉज देर इज अ प्रेजेंस ऑफ एस्कार एंड स्लाउज. द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज कैन नॉट बी कंफर्म. आपको कंफर्म ही नहीं होगा कि कितना डीप है. ऊपर से आप अगर इमेज में देखो तो आपको सिर्फ ब्लैक दिख रहा है, देयर इज अ स्कार फॉर्मेशन. सो अंदर कितना डीप है वो आपको कैसे पता चलेगा. अगर ओपन होता तो आपको दिखता भी सही कि एडिपोज टिश्यू दिख रहे हैं या मसल्स दिख रहे हैं, बट इफ देयर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ स्लाउश एंड एस्कार तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके नीचे एडिपोज टिश्यूज है या मसल्स है. So you cannot identify the stage. अगर adipose tissue दिखेंगे, so which stage would be there? Online students, अगर आपको adipose tissues दिखते हैं, so what is the stage? Come on, we have just completed. Stage 3. Stage 3. और अगर आपको muscles, tendons, ligaments, bones, cartilage वैसा कुछ दिख रहा है, so it indicates स्टेज 4. बट ये टाइप का जो प्रेशर इंजरी है उस पर एस्कर फॉर्मेशन हो गया है, कंप्लीटली ऊपर से क्लोज हो गया है, सो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा. सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि विच स्टेज इज दिस. सो इट इज अनस्टेजेबल. So the extent of damage cannot be confirmed because it is obscured by eschar or slouch. Completely fill हो गया. You can see in the image कि normally this is stage 4 but वो पूरा fill हो गया है. So पता ही नहीं चलेगा कि कौन से stage तक damage हुआ है. इमेज के अकॉर्डिंग डायरेक्टली बोन्स तक पूरा डैमेज है. जो फिगर है उसमें बोन्स तक पूरा पहुंच गया है, बट इट इज फिल्ड विथ एस्कार टिश्यूज, सो नॉर्मली आप स्टेज नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट इज सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी. सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी उसमें क्या होता है, सो परसिस्टेंट नॉन ब्लांचेबल डीप रेड मरून और पर्पल डिस्कलरेशन. दिस इज सिमिलर टू स्टेज 1. इसमें स्किन इंटेक्ट होगी या फिर स्लाइटली ऐसे स्किन पीलिंग जैसा होगा. कंप्लीटली वो रेड होगी, मरून होगी या पर्पल होगी. स्टेज 1 में ओनली रेड होगी, नो मरून एंड नो पर्पल डिस्कलरेशन, बट इट कुड इन दिस स्टेज इट कुड बी रेड, मरून और पर्पल डिस्कलरेशन. आप प्रेशर करोगे देन इट विल नॉट ब्लांच, इट इज नॉन ब्लांचेबल, ब्लांचिंग भी नहीं होगा. may appear different in people with darker pigmentation. जो डार्क स्किन के होंगे उसमें कलर डिफरेंट होगी. एपिडर्मल सेपरेशन शोज अ डार्क वुंड बेड और ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स. जो पहला एपिडर्मल सेपरेशन है, मैंने बोला कि स्किन पीलिंग जैसा लिटिल बिट स्किन पीलिंग होगा, तो उसमें पूरा ऐसे ऐसे डार्क रेड कलर का आपको दिखेगा वुंड बेड, या फिर ब्लिस्टर्स होंगे और वो भी ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स होंगे. सो उससे पता चलता है कि इंजरी बहुत डीप है और ऊपर से बहुत अच्छे से दिख नहीं रही है. देर इज नो एनी पिटिंग, खड्डा नहीं हो गया है, स्किन लॉस भी नहीं हुआ है, देर इज ओनली अ स्किन पीलिंग. पर यू कैन सी इन द फिगर कि वो रेडनेस पूरी नीचे तक चली गई है पर ऊपर बहुत डैमेज नहीं हुआ. सो दिस टाइप ऑफ स्टेज और दिस टाइप ऑफ प्रेशर इंजरी इज कॉल्ड एज सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी. आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये ऐसा है, तो डीप तक तो रेडनेस चली गई होगी, डीप तक इंजरी हुई है पेशेंट को. अंडरस्टूड? Yes or no? Okay. So interventions. आपको पता चल गया, आपने स्टेज आइडेंटिफाई कर लिया कि पेशेंट को ये स्टेज का प्रेशर सोर हो गया है या बेड सोर हो गया है. सो व्हाट आर द इंटरवेंशन? सो फर्स्ट रेड important point is avoid direct massage to redden skin area because massage can damage the capillary beds and cause tissue breakdown and necrosis. अगर आपको पता चले स्टेज 1 में है, पेशेंट को सिर्फ रेडनेस है, सो डोंट मसाज दैट एरिया. आप मसाज करके ऐसा सोचोगे कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा. नो, मसाज करने से ऊपर से कैपिलरीज डैमेज हो जाएगी और जल्दी से नहीं हुआ है, अभी स्टेज 1 में है तो तुरंत ही स्टेज 2 में चला जाएगा. सो
अवॉइड डायरेक्ट मसाज टू द रेडन स्किन एरिया, जहां पर रेडनेस हो गई है वहां पर मसाज नहीं करना है डायरेक्टली, बिकॉज मसाज की वजह से कैपिलरी बेड्स डैमेज हो जाएंगे और टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाएगा, टिश्यू ब्लड को टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा एंड देयर विल बी अ नेक्रोसिस। आइडेंटिफाई द क्लाइंट एट रिस्क फॉर डेवलपिंग अ प्रेशर इंजरी। क्लाइंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है पहले से ही कि किसको रिस्क ज्यादा है प्रेशर इंजरी का। एंड हाउ यू विल आइडेंटिफाई द रिस्क, कैसे रिस्क पता चलेगा? पेशेंट इमोबाइल हो तो यस, रिस्क फैक्टर्स है जो, उससे तो पेशेंट को रिस्क है। अनदर थिंग इज ब्रेडन स्किन। जो ये रिस्क फैक्टर्स हमने देखे थे कि जिसकी वजह से प्रेशर इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है, तो ऐसे क्लाइंट्स पे आप खास ध्यान दोगे बिकॉज दिस क्लाइंट्स आर रिस्क फॉर प्रेशर इंजरी। सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स, जो इमोबाइल है, जिनको इनकंटिनेंस है, जो सेंसरी से परसेप्शन उनका ऑल्टर हो गया, सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स। और उसके अलावा उसमें ज्यादा ध्यान दोगे और ब्रेडन स्केल का आप यूज करोगे, बिकॉज इसमें रिस्क ज्यादा है तो पहले से ही ब्रेडन स्केल आप यूज करोगे। तो जैसे ही ब्रेडन स्केल का स्कोर कम होगा आपको पता चल जाएगा कि नाउ इट इज इन रिस्क, पेशेंट को अभी कभी भी प्रेशर सोर्स हो सकते हैं। सो आप ब्रेडन स्केल से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंस्टीट्यूट मेजर्स टू प्रिवेंट द प्रेशर इंजरी such as appropriate positioning, using pressure relief devices, ensuring adequate nutrition and developing a plan for skin cleansing and care। आपको पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, होने तक आपको वेट नहीं करना है। तो आप प्रॉपर पोजीशन दे सकते हो या फिर चेंजिंग द पोजीशन फ्रीक्वेंटली। वी आर दैट्स व्हाई चेंजिंग द पोजीशन। जो पेशेंट लॉन्ग टर्म से बेड रिडन है, सो 2 आवरली पोजीशन चेंज क्यों करते हैं? सो एक ही जगह पर कंटिन्यूअस प्रेशर ना हो, इसीलिए प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। एयर बेड्स है, वाटर मैट्रेसेस है, तो दिस आर द डिफरेंट बेड्स कि जो सॉफ्ट होता है और उससे प्रेशर रिलीफ होगा। एडिक्वेट न्यूट्रिशन दोगे पेशेंट को तो भी उसको अच्छे से, न्यूट्रिशन की वजह से थोड़ा भी डैमेज हो गया तो हीलिंग जल्दी हो जाएगा। रेगुलरली स्किन क्लीनिंग, स्किन केयर करोगे पेशेंट की तो भी वो रिस्क प्रिवेंट हो जाएगा। परफॉर्मिंग frequent skin assessment and monitor for alteration in skin integrity। आप रेगुलरली स्किन असेसमेंट करोगे, स्किन इंटीग्रिटी में एनी चेंजेस है या नहीं वो आप चेक करोगे, मॉनिटर करोगे ऑल्ट्रेशन, सो उससे भी प्रिवेंट हो सकता है। सो दिस आर द इंटरवेंशंस। कीप द क्लाइंट स्किन ड्राई एंड शीट्स wrinkle free। if the client is incontinent, check the client frequently and change pads or any item placed under the client immediately after they are soiled। yes, पहले तो पेशेंट की स्किन एकदम ड्राई मेंटेन रखनी है, थोड़ी भी वेट होगी तो जल्दी पेशेंट की स्किन डैमेज हो जाएगी। सो पेशेंट की स्किन ड्राई रखनी है। जो बेडशीट है वो रिंकल फ्री रखनी है, उसमें ऐसे रिंकल्स नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। और अगर पेशेंट इनकॉन्टिनेंट है, फ्रीक्वेंटली यूरिन या स्टूल पास कर रहा है, डायरिया हो गया है पेशेंट और बेड रिडन है और फ्रीक्वेंटली इनकॉन्टिनेंस हो गया है, सो जो भी डायपर्स है या अंडर पैड्स रखे हैं बेड पर, हमें फ्रीक्वेंटली चेंज करने होंगे, बिकॉज गीले का गीला रखोगे सो उससे बेड सोर्स ज्यादा हो सकते हैं। यूज क्रीम्स एंड लोशंस टू lubricate the skin and a barrier protection ointment for the incontinent client। जो पेशेंट इनकॉन्टिनेंट है, यूरिन और स्टूल ज्यादा पास करता है, तो जो एरिया है स्किन बहुत रेड हो जाएगी उसमें फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की वजह से। तो आप अच्छे से क्रीम्स, लोशंस, ल्यूब्रिकेंट्स यूज कर सकते हो, या फिर बैरियर प्रोटेक्शन ऑइंटमेंट्स आती है वो भी यूज कर सकते हो। आपको पता होगा कि जो पेशेंट कंप्लीटली बेड रिडन होते हैं, सो उन्हें मॉर्निंग में स्किन केयर के वक्त ही ऐसे क्रीम्स और लोशंस लगा दिए जाते हैं। टर्न एंड रीपोजिशन द इमोबाइल क्लाइंट एवरी 2 आवर और मोर फ्रीक्वेंटली इफ नेसेसरी। मिनिमम एवरी 2 आवर तो आपको पोजीशन चेंज करनी है, बट अगर रिस्क ज्यादा है तो एवरी 15 मिनट, एवरी 30 मिनट, एवरी 1 आवर, एवरी 1.5 आवर, ऐसे ज्यादा भी आप मूव कर सकते हो, बट 2 आवर में तो आपको मूव करना ही होगा, पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी होगी। प्रोवाइड एक्टिव एंड पैसिव ROM एट लीस्ट एवरी 8 आवर्स। उसको एक्सरसाइज भी करानी है, तो एक्टिव और पैसिव ROM करवा सकते हो आप एवरी 8 आवर्स, एटलीस्ट 8 घंटे में तो आपको कराना ही है। अगर 7 और 6 आवर्स में नहीं करा सकते तो एटलीस्ट make ROM in every 8 hours। so these are the interventions। if pressure injury present, ये सारे इंटरवेंशंस कैसे थे? अब तक हमने देखे 1 to 6 वो कैसे थे? फॉर द प्रिवेंशन, हो ही नहीं उसके लिए सारे इंटरवेंशन से। अभी प्रेशर इंजरी हो गई है
सो कैसे इंटरवेंशन करोगे आप? So if a pressure injury is present, record the location and size of the wound. कैसे लिखोगे? साइज तो लेंथ, विड्थ, डेप्थ कितनी है वो सारी इन सेंटीमीटर्स. मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सुडेट्स. कौन सा एक्सुडेट्स आ रहा है? एक्सुडेट मींस ड्रेनेज. So whether there is a serous, serosanguineous, sanguineous, purulent, कैसा ड्रेनेज है. A culture of the exudate may be prescribed. अगर आपको रिस्क लगे, इन्फेक्टेड लगे, तो उसका कल्चर भी हो सकता है. एंड असेस फॉर अंडरमाइनिंग एंड टनलिंग. जो अंडरमाइनिंग गड्ढा हो गया है उसको भी असेस करो कि आपको क्या दिख रहा है, वेदर इट इज एपिडर्मिस, एडिपोस की मसल्स. सो उसको भी असेस करो. सो अगर प्रेशर इंजरी प्रेजेंट हो तो आपको उसकी कहाँ पर है लोकेशन लिखनी होगी कि बटक्स पर है, बैक पर है, थाइज में है, एंकल पर है, कहाँ पर है. तो यू हैव टू रिकॉर्ड द लोकेशन. साइज, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, कितनी डेप्थ है, कौन से अमाउंट का डिस्चार्ज हो रहा है. एंड डिस्चार्ज में अगर आपको डाउटफुल हो तो कल्चर भी आप करवा सकते हो. डॉक्टर को बोल सकते हो कि देयर इज अ माइट बी अ पुरुलेंट डिस्चार्ज, सो डॉक्टर विल ऑर्डर यू टू फॉर द कल्चर. एंड जो भी डेप्थ है, टनलिंग हो गया, सो उसको भी असेस करना होगा कि क्या दिख रहा है आपको, तो उससे आपको स्टेज पता चलेगा. Depending on the agency policy, it may be required to have a picture documentation on a file of a pressure injury or other disruption in the skin integrity that may include a client identifier, measuring devices, and label indicating wound laterality and location. Yes, depending on the agency policy, हर एक हॉस्पिटल में अलग अलग रूल्स होते हैं. सम हॉस्पिटल में दे आर टेलिंग यू टू टेक द पिक्चर. जो भी प्रेशर इंजरी हुई है उसका पिक्चर लेना होता है. एंड यू हैव टू डॉक्यूमेंट कि कौन सा क्लाइंट है, लाइक क्लाइंट आइडेंटिफायर, मेजरिंग डिवाइस क्या था, लेबल्स, कैसे लेबल्स हो गए, तो उसमें वुंड लेटरलिटी, लोकेशन, क्या कहाँ पर है वुंड, वो सब आप डॉक्यूमेंट करोगे along with the picture. If the wound or other skin problem is noted, it may be necessary to request a referral to wound care और न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट. अगर आपको कोई वुंड दिखता है पेशेंट की बॉडी पर या कोई भी स्किन प्रॉब्लम दिखता है, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप न्यूट्रिशनिस्ट को या फिर वुंड केयर जो स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है वहां पर उसको रिफर करो पेशेंट को. तो वो प्रॉपरली उस पर ही ध्यान देंगे और वुंड हील हो सकता है जल्दी से. सीरोसेंग्विनियस एक्सुडेट, दैट इज सीरोसेंग्विनियस मींस कौन से कलर का होगा? पिंक, पेल, वैसा वाटरी होगा. एंड इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? ऑनलाइन नॉर्मल. नॉर्मल. सो सीरोसेंग्विनियस एक्सुडेट मे बी नोटेड बिकॉज बेड सोर्स हुआ है, सो इंजरी में से सीरोसेंग्विनियस एक्सुडेट्स हो सकता है. प्यूरेंट एक्सुडेट्स इंडिकेट्स कोलोनाइजेशन ऑफ द वुंड विथ बैक्टीरिया. सीरोसेंग्विनियस हो सकता है, बट अगर प्यूरुलेंट आपको दिखाई देता है, सो व्हाट डज इट इंडिकेट? कोलोनाइजेशन ऑफ द बैक्टीरिया. यस, वहां पर इंफेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया है. यूज एजेंसी प्रोटोकॉल्स फॉर स्किन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ अ वुंड. आप जो भी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो वहां का प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करना है. हाउ टू असेस द स्किन एंड हाउ टू मैनेज अ वुंड. Treatment may include wound dressing and debridement. Skin grafting may be necessary. अभी प्रेशर इंजरी हो गई है, सो उसके ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे? यू हैव टू डू द वुंड ड्रेसिंग. रेगुलरली आपको ड्रेसिंग करना होगा एंड डेब्रिडमेंट करना होगा. व्हाट इज दैट? डेब्रिडमेंट मींस यस, वी हैव टू ड्रेनेज. क्लीन द. यस, जो टिश्यू डेब्रिज ग्राफ्ट. अंदर फॉर्म हो गए हैं वो सारे रिमूव करनी होगी. डेब्रिज रिमूव करना है. जो भी अंदर वेस्ट जनरेट हो गया है वो पिकिंग करके, इरिगेशन करके हमें रिमूव करना है. सो दैट इज डेब्रिडमेंट. इन स्किन ग्राफ्टिंग मींस आप उसमें फिलिंग करते हो, स्किन ग्राफ्टिंग करते हो, कहीं से स्किन निकाल के वहां पर ग्राफ्टिंग किया, सो दैट इज स्किन ग्राफ्टिंग. सो अगर बहुत ज्यादा डीप है, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज तक है, सो स्किन ग्राफ्टिंग भी करना पड़ेगा. We will see table 16.2 and 16.3. Let's see the last point first. Other treatments may include electrical stimulation of the wound area. Why electrical stimulation? Other treatment we are using such as electrical stimulation. क्यों? So it increases the blood vessel growth and stimulates granulation. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्यों यूज करते हैं? जहां पर वुंड हो गया है, सो उसकी वजह से ब्लड वेसल ग्रोथ फटाफट इंक्रीज होगा और ग्रेन्युलेशन फटाफट स्टार्ट हो जाएगा. ग्रेन्युलेशन वी नो कि वहां पर स्कार ऐसे टिश्यूज फॉर्म हो जाएंगे एंड फटाफट क्लोज हो जाएगा. वैक्यूम असिस्टेड वुंड क्लोजर,
वैक्यूम असिस्टेड वुंड क्लोजर, दैट इज अनदर ट्रीटमेंट, वो भी हम यूज कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? इट रिमूव्स द इंफेक्शियस मटेरियल फ्रॉम द वुंड एंड प्रमोट्स द ग्रेन्युलेशन। वो सारा जो इन्फेक्टेड मटेरियल था वो सब रिमूव हो जाएगा, और जैसे वो रिमूव हो जाएगा सो फटाफट ग्रेन्युलेशन स्टार्ट हो जाएगा उसमें। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी हम दे सकते हैं। क्यों? हाइपरबेरिक से क्या हेल्प होगी? सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर रेजेस द टिश्यू ऑक्सीजन इन कॉन्सेंट्रेशन। वो नेक्रोसिस और वो सब क्यों हुआ था? बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हुआ। तो हम पेशेंट को हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, सो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा उस टिश्यूज को, और फटाफट वुंड हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट इज यूज ऑफ टॉपिकल ग्रोथ फैक्टर्स। लास्ट ट्रीटमेंट इज टॉपिकल ग्रोथ फैक्टर्स यूज कर सकते हो। टॉपिकल मीन्स आप ऊपर से यूज कर रहे हो, सो उससे क्या होगा? There are some biologically active substances that stimulates the cell growth. जहां पर बेड सोर्स है, ऊपर से ऐसी ऑइंटमेंट जैसा आता है, जो आप लगाओगे उसमें एक्टिव सब्सटेंस है, बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस जो सेल ग्रोथ प्रमोट करते हैं। तो दिस आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। अंडरस्टूड? મેડમ આ यस? સ્ટિમ્યુલેશન થેરાપી બન્સમાં આપી શકાય? नो, इन बर्न्स वी कैन नॉट गिव दैट, बिकॉज इन बर्न्स वो बहुत सारा मतलब इंजरी हुआ है। माइनर बर्न्स होता तो अगर हम ड्रेसिंग करने से आ जाता, बट अगर ज्यादा बर्न्स है तो ऐसा नहीं दे सकते। ओके, सो लेट्स सी अबाउट टेबल 16.2 एंड 16.3 कि कौन से स्टेज में कैसा ड्रेसिंग करना है। सो फर्स्ट इज टेबल 16.2, टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर प्रेशर इंजरी। कि अगर स्टेज 1 इंजरी है, प्रेशर इंजरी, तो कौन से ड्रेसिंग मटेरियल आप यूज करोगे? स्टेज 2 है तो कौन सा यूज करोगे? एंड व्हाट इज द रीजन? क्या होता है अगर ये टाइप का ड्रेसिंग मटेरियल यूज करते हो तो हीलिंग कैसे होता है? सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। So let's see first stage 1 pressure injury, that is stage 1. So stage 1 में कैसा होता है? स्किन कैसी होती है? Only redness, skin is intact. So normally none dressing is required. नहीं करोगे तो भी चलेगा। Now you have to make sure कि वो बढ़े नहीं, सिर्फ stage 1 में से easily heal हो सकता है। So there might be no any type of dressing material. But if you want to do the dressing, so कौन से टाइप का ड्रेसिंग यूज कर सकते हो? ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग एंड हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग। क्यों? ये दोनों ड्रेसिंग मटेरियल यूज करने से क्या होगा? स्लो रिजोल्यूशन विदाउट एपिडर्मल लॉस विद इन 7 to 14 डेज। ये टाइप का ड्रेसिंग आप यूज करोगे, सो एपिडर्मल लॉस अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है, सो एपिडर्मल लॉस भी नहीं होगा, और 7 to 14 डेज में फटाफट रिजॉल्व होना भी स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज फॉर स्टेज 1। स्टेज 2 में कौन से टाइप का ड्रेसिंग मटेरियल आप यूज करोगे? सो इट इज कॉम्पोजिट फिल्म, हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग एंड हाइड्रोजेल कवर्ड विथ फोम और गॉज ड्रेसिंग। ये आपने पहली बार सुने हैं कि व्हाट इज हाइड्रोकोलॉइड, हाइड्रोजेल। सो टेबल 16.3 है, उसमें सब डिटेल में दिया है कि हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग कैसा होता है, हाइड्रोजेल ड्रेसिंग कैसा होता है, कॉम्पोजिट फिल्म कैसा होता है। सो वी विल स्टडी दैट। बट राइट नाउ रिमेंबर कि स्टेज 2 में ये 3 मटेरियल यूज होते हैं, कॉम्पोजिट फिल्म, हाइड्रोकोलॉइड एंड हाइड्रोजेल। उससे क्या होगा? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? सो हील्स थ्रू रीएपिथेलियलाइजेशन। वी नो कि एपिथेलियल टिश्यू है, सो स्टेज 2 में फर्स्ट लेयर डैमेज हो गया है, सो ये टाइप का ड्रेसिंग टाइप आप मटेरियल यूज करोगे, सो एपिथेलियलाइजेशन जो है, एपिथेलियल टिश्यूज फिर से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, सो इट हील्स थ्रू रीएपिथेलियलाइजेशन। नेक्स्ट इज स्टेज 3। अगर स्टेज 3 प्रेशर अल्सर हो तो आप कौन सा ड्रेसिंग टाइप यूज करोगे? सो हाइड्रोकोलॉइड, हाइड्रोजेल कवर्ड विथ फोम ड्रेसिंग, कैल्शियम आल्जीनेट एंड गॉज पीस जो होता है। सो दिस आर द ड्रेसिंग टाइप। उससे क्या होगा? सो हील्स थ्रू ग्रेन्युलेशन एंड रीएपिथेलियलाइजेशन। उसमें अगर स्टेज 3 है दैट इज डीप, सो ये सारा यूज करोगे, सो उससे ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्म होंगे, जो डीप गड्ढा हो गया उसमें ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्म होंगे एंड रीएपिथेलियलाइजेशन होगा, नए सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेज 4। स्टेज 4 में आप कौन से ड्रेसिंग टाइप यूज करोगे? सो हाइड्रोजेल कवर्ड विथ फोम ड्रेसिंग, कैल्शियम आल्जीनेट एंड गॉज। सो गॉज से उसको कवर करना है, गॉज पीस से, सो दिस इज द ड्रेसिंग मटेरियल। उसमें कैसा होगा?
सो कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट इज दैट? तो हील्स थ्रू ग्रेन्युलेशन, reepithelialization and scar tissue development because it is more deeper than stage 3, उससे भी डीप है. सो इस टाइप का ड्रेसिंग मटेरियल यूज करने से ग्रेन्युलेशन तो होगा, नए सेल्स भी फॉर्म बनने स्टार्ट होंगे एंड स्कार टिश्यू भी डेवलपमेंट फटाफट स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज अनस्टेजेबल. अनस्टेजेबल में हमें पता नहीं है कि कितना डीप है वुंड बिकॉज कंप्लीटली वो किससे कवर हो गया है, तो एस्कार्ड एंड स्लाउट से वो कंप्लीटली कवर हो गया है. सो वी कैन नॉट डिटरमाइन कि कितना स्टेज है. सो ऐसे टाइप के प्रेशर इंजरीज में कैसा ड्रेसिंग मटेरियल यूज करोगे? ड्रेसिंग टाइप इज एडहेरेंट फिल्म, गॉज विथ प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब किया है वो, एंजाइम्स आपको लगेंगे सर्टेन, एंड यू कैन नन ऑल्सो. नन मीन्स कुछ भी नहीं करना बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द स्टेज. सो इट माइट बी नन और 3 ऑफ दिस. उससे क्या होगा? एस्कार्स लूजन्स, जो एस्कार फॉर्मेशन हो गया है वो लूज हो जाएगा एंड लिफ्ट द एजेस एज हीलिंग अकर्स. सर्जिकल डेब्रिटमेंट में बी नेसेसरी. जो एस्कार फॉर्मेशन हो गया, सब फील हो गया था, वो सब लूज हो जाएगा एंड जो उसकी एजेस है, जैसे जैसे हीलिंग स्टार्ट होगा उसकी एजेस लिफ्ट होगी. और समटाइम्स अगर वो ना हो तो हमें डेब्रिटमेंट करके वो सब एस्कार टिश्यूज जो काला काला जो फॉर्म हो गया था, सर्जरी करके वो सारा ब्लैक टिश्यूज ऐसे खुतर खुतर कर हमें निकालना पड़ेगा. सो सर्जिकल प्रोसीजर इज ऑल्सो नीडेड इन दिस टाइप ऑफ pressure injury. Last is suspected deep tissue injury. It is only suspected. ऊपर से रेड दिख रहा है पर अंदर तक रेडनेस चली गई है, कुछ लाइक पूरा खड्डा ऐसा कुछ नहीं हुआ है. सो ऐसे में कौन सा ड्रेसिंग टाइप यूज करोगे आप? सो कैल्शियम अल्जीनेट और अदर्स. कैसे वर्क करता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? सो हीलिंग प्रोसेसेस डिपेंड्स ऑन द ट्रीटमेंट यूज. कौन सी ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि हीलिंग कैसे हो रही है. So these are the different stages, कैसा ड्रेसिंग टाइप यूज कर रहे हैं एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म कि कैसे हील हो रहा है अगर ये यूज कर रहे हो तो. एनी डाउट इन दिस? यस और नो? No, ma'am. ओके, सो लेट्स सी टेबल 16.3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो हमने वर्ड यूज किए, कैल्शियम अल्जीनेट एंड गॉज एंड हाइड्रोक्लोराइड एंड व्हाट इज दैट, वो हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट इज अल्जीनेट. अल्जीनेट क्या होता है? What are the indication, uses and consideration? कौन से पेशेंट में हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं? So it provides homeostasis. Hemostasis. Hemostasis means બ્લડ કલેક્શન થાય. yes. So normal balance of the blood. जो blood वहां पर blood फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो. सो अल्जीनेट यूज करने से हीमोस्टेसिस हो सकता है, डेब्रिटमेंट होगा वहां पर, वो सारे जो टिश्यूज है वो निकल जाएंगे, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा एंड प्रोटेक्शन होगा जो वुंड है उसका. कैन बी यूज एज अ पैकिंग फॉर डीप वुंड्स एंड फॉर इन्फेक्टेड वुंड्स. ये जो अल्जीनेट टाइप का ड्रेसिंग मटेरियल है वो डीप वुंड्स होते हैं उसमें पैकिंग करने के लिए भी यूज होता है एंड समटाइम्स इन्फेक्टेड वुंड हो तो उसमें भी कैल्शियम अल्जीनेट ऐसे डालकर आप पैकिंग कर सकते हो. रिक्वायर्स अ सेकेंडरी ड्रेसिंग फॉर सिक्योरिंग. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कैल्शियम अल्जीनेट ऐसे डाल दिया तो खुद से वुंड हील हो जाएगा, नहीं, उसको पैक भी करना होगा. सो जो डीप गड्ढा था उसमें आपने कैल्शियम अल्जीनेट लगा दिया तो उसके ऊपर गॉस पीस रखे, उसको सिक्योर करना होगा. यू कैन नॉट लीव इट ओपन. So it also requires secondary dressing for securing. जो कैल्शियम अल्जीनेट आपने देखा होगा, आपने कॉमनली यूज्ड जो एडिमा वाले पेशेंट होते हैं, मैग्नीशियम MgSO4 का ड्रेसिंग. मैग्नीशियम सल्फेट. यस, तो MgSO4 का ड्रेसिंग करते हैं तो वो स्वेलिंग निकाल देगा, पर अगर हम ऐसे खुला रखेंगे तो इट वोंट वर्क. तो उसके ऊपर भी आपको सेकेंडरी ड्रेसिंग करना पड़ता है कि वो वहां पर सिक्योर रहे जो आप यूज कर रहे हो. तो सेम कैल्शियम अल्जीनेट में भी ऐसा होता है कि इससे ये हेल्प होती है और उसको ऊपर से सिक्योर करना होगा. When dressing is saturated every 3 to 5 days or move more frequently. कैसे आपको ड्रेसिंग चेंज करनी है? आपको पता है कि जब आप MgSO4 यूज कर रहे हो सो वो इतने टाइम में चेंज करना होता है. तो जस्ट लाइक दैट कैल्शियम अल्जीनेट आप यूज कर रहे हो सो एवरी 3 to 5 days में वो सेचुरेट हो जाएगा. अब उसकी कैपेसिटी नहीं है,
उसको हील करने की। सो एवरी 3 to 5 डेज आपको वो चेंज करना होगा। 3 से 5 दिन तक वो अपना वर्क कर सकता है, उसके बाद उसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है। सो एवरी 3 to 5 डेज में वो सेचुरेटेड हो जाएगा, पूरा ड्रेसिंग ऐसे भर जाएगा वो डेब्रिटमेंट से और सब कुछ एब्सॉर्प्शन करके। सो यू हैव टू चेंज इट एवरी 3 to 5 डेज और मोर फ्रीक्वेंटली, जितना डिपेंडिंग ऑन द नीड आपको फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हो। Next is antimicrobial type of dressing. So impregnated with antimicrobial agents such as medical grade honey, chlorhexidine और silver ions. आप एंटीमाइक्रोबियल ऑइंटमेंट लगाते हो तो आपने सिर्फ ऑइंटमेंट लगाई है, उसमें सब एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स डाले हुए हैं। सो उसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है उसकी। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज एज प्रिस्क्राइब एंड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रेनेज। वो आप कितनी बार लगाओगे एंटीमाइक्रोबियल ऊपर, सो इट डिपेंड कि कितने टाइप का ड्रेनेज है और कितने टाइप का डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। अगर डॉक्टर बोले कि एवरी 2 आवर आपको एंटीमाइक्रोबियल ऊपर लगानी है ऑइंटमेंट, तो एवरी 2 आवर लगाओगे, एवरी 3 आवर, एवरी 4 आवर, डिपेंडिंग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। इट इज नॉट सेड के इतने टाइम में तो आपको रिमूव करना होगा और लगाना होगा। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल, जो हमने देखा था कि बायोलॉजिकली एक्टिव एजेंट्स हम जो डालते हैं वो। सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड डेब्रिटमेंट आफ्टर एस्कर्ट रिमूवल। जो एस्कर्ट टिश्यूज अंदर फॉर्म हो गए वो हम सब रिमूव कर देंगे। सो वहां पर जो वुंड है, नाउ द वुंड इज ओपन, सो वहां पर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एंड डेब्रिटमेंट भी जो लगेगी उसमें भी हेल्प करेगा। May be used for dormant and non-healing wounds that do not respond to other topical therapies. ऐसे वुंड है जहां पर ज्यादा यूज होते हैं जो डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मीन सो गए हैं बहुत टाइम से, 3-4 हफ्तों से वुंड है पर कुछ भी उसमें चेंजेस ही नहीं है, ना हील होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो वुंड अभी सो गया है। सो वुंड हैज बिकम डॉर्मेंट और नॉन हीलिंग, हील ही नहीं हो रहा है। So you have to put some biological active agents कि जिससे healing start हो। May be used for burns or before pig skin and cadaver skin graft. जो burns patient होते हैं उसमें biological agents आप use कर सकते हो कि जल्दी healing start हो। और pig skin और cadaver skin graft, अगर skin grafting करते हैं, skin grafting means प्लास्टिक सर्जरी में जो स्किन ग्राफ्टिंग होती है, सो उसमें कैडेवर जो ऑलरेडी डेड पर्सन है उसकी स्किन ऐसे डोनेट करके लेकर स्किन ग्राफ्टिंग हो सकती है, या फिर पिग की स्किन। सो उसको अप्लाई करने से पहले भी ये बायोलॉजिकल एजेंट्स डालते हैं कि फटाफट वहां पर हीलिंग हो जाए। कन्फर्म्स टू अनइवन वुंड सरफेसेस, रिड्यूस पेन, रिक्वायर्स अ सेकेंडरी ड्रेसिंग फॉर सिक्योरिंग। आप अगर ये डालते हो तो उसके ऊपर भी सेकेंडरी ड्रेसिंग करना होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रेसिंग चेंज क्या है? सो टॉपिकल ग्रोथ फैक्टर्स चेंज डेली, स्किन सब्स्टिट्यूट्स, द नीड फॉर ड्रेसिंग चेंज वराइज। ये जो टॉपिकल ग्रोथ फैक्टर्स आपने लगाए हैं सो आपको डेली चेंज करने होंगे। एंड जो ड्रेसिंग चेंज है वो डिपेंड करेगा उसमें कितना, लाइक डेली चेंज करना है बट कैसे करना है, क्या करना है, इट डिपेंड्स, it varies. Next is gauze. Gauze, we know what is gauze. So it is continuous dry dressing, provides absorption and protection. Gauze रखते हो तो सब जो डिस्चार्ज होता है सब गॉज में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन। आप कवर करते हो तो डायरेक्टली कुछ भी अंदर जाए नहीं। कंटिन्यूअस वेट ड्रेसिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन, अ मीन्स फॉर डिलीवरी ऑफ टॉपिकल ऑइंटमेंट एंड डेब्रिटमेंट। जो वेट ड्रेसिंग है, अगर गॉस पीस को आप किसी चीज में, मेडिकेशंस में, या आपने देखा होगा कि बीटाडीन वाला करके हम लगाते हैं, सो वेट ड्रेसिंग होता है वो भी प्रोटेक्शन के लिए होता है। जो भी टॉपिकल ट्रीटमेंट लाइक बीटाडीन या फिर कोई ऑइंटमेंट आप गॉस पीस पर लगा के डायरेक्टली लगा देते हो, तो वो टॉपिकल जो ट्रीटमेंट आपको देनी है वुंड में वो देने के लिए भी यूज होता है एंड डेब्रिटमेंट के लिए भी, बिकॉज सारा वेस्ट गॉज कलेक्ट कर लेगा। वेट टू डैम्प ड्रेसिंग प्रोवाइड्स एट्रोमेटिक मैकेनिकल डेब्रिटमेंट। थोड़ा गीला या डैम्प, डैम्प मींस बहुत गीला नहीं होगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा वेट होता है, डैम्प क्लोथिंग। सो ऐसे टाइप का अगर गॉज यूज करोगे सो उससे एट्रोमेटिक मैकेनिकल डेब्रिटमेंट हो सकती है। एट्रोमेटिक मींस अगर आप ड्राई गॉज यूज करोगे और वुंड ऐसे क्लीन करोगे सो पेशेंट को जो वुंड है उसमें ट्रॉमा होगा, पेशेंट को बहुत पेन होगा। बट अगर आप गॉज पीस, फॉर एग्जांपल दिस इज द गॉज पीस, दिस इज गॉज पीस, ये मैंने थोड़ा गीला किया है एंड दिस इज द वुंड, तो मैं ऐसे ऐसे करके वो सारा जो वेस्ट है डेब्रिटमेंट कर सकती हूँ विदाउट क्रिएटिंग अ ट्रॉमा। सो एट्रोमेटिक मैकेनिकल डेब्रिटमेंट मैं ऐसे गॉज से कर सकती हूँ पेशेंट में।
इट मे बी पेनफुल ऑन रिमूवल, यस। अगर गॉस पीस ऐसे आप रिमूव करोगे पेशेंट को तो बहुत पेनफुल होगा। फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? सो क्लीन बेस एवरी 12 to 24 आवर्स एंड नेक्रोटिक बेस एवरी 4 to 6 आवर्स। आपको पता है कि आप सब चीजें लगाकर गॉस पीस ऊपर रखते हो तो ऊपर का गॉस पीस एकदम क्लीन है, कंप्लीटली ड्राई है, सो एवरी 12 to 24 आप चेंज करोगे तो चलेगा। पर जो नीचे का बेस है जो फ्रीक्वेंटली सब अब्सॉर्ब करके गीला हो गया है, जो नेक्रोटिक हो गया है, उसको एवरी 4 to 6 आवर्स आपको चेंज करना होगा बिकॉज इट इज वेट। अगर उसको ऐसे का वैसा रखोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। सो जो नीचे का नेक्रोटिक बेस है, गंदा है, उसको एवरी 4 to 6 आवर्स चेंज करना होगा, और ऊपर का एवरी 12 to 24 आवर्स। नेक्स्ट इज फोम। फोम क्या होता है? सो इट प्रोवाइड्स एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, इंसुलेशन एंड डेब्रिटमेंट। फोम टाइप का ड्रेसिंग मटेरियल यूज करने से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड्स द इंसुलेशन ऑल्सो एंड डेब्रिटमेंट। सब कुछ एब्जॉर्ब होके वुंड क्लीन हो जाएगा, डेब्रिटमेंट हो जाएगा वुंड का। It conforms to uneven wound surfaces। जो wound surfaces uneven है उसको भी completely confine करेगा। Requires a secondary dressing for securing। फोम रखने से गॉस पीस कैसा होता है? अगर गॉस पीस रख दिया तो उसके ऊपर कुछ सेकेंडरी ग्लास ऊपर ड्रेसिंग नहीं लगेगा, बट अब इफ वी आर यूजिंग फोम सो उसके ऊपर आपको एक सेकेंडरी ड्रेसिंग, और सेकेंडरी ड्रेसिंग में गॉस पीस, बैंडेजेस वैसा ही हम यूज करते हैं। When dressing is saturated or more frequently can remain for maximum 7 days। अब कैसे चेंज करना है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर चेंजिंग? तो जब सैचुरेटेड हो जाए, पूरा गीला हो जाए, पूरा गंदा हो जाए तो आपको क्लीन करना होगा। और मोर फ्रीक्वेंटली, जितनी जरूरत हो, जितना डिस्चार्ज ज्यादा हो उतना जल्दी क्लीन आपको चेंज करना होगा। बट नॉर्मली अगर बहुत गंदा नहीं होता तो 7 दिन तक वहां पर वो रह सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर पेशेंट को बहुत डिस्चार्ज नहीं है, बहुत डेब्रिटमेंट की जरूरत नहीं है, तो 7 दिन तक भी आप उसको वहां पर रख सकते हो। सेम फोम। हाइड्रोकोलोइडल टाइप का ड्रेसिंग, सो कैसे यूज होता है? तो इट प्रोवाइड्स एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन एंड डेब्रिटमेंट। इट इज अ वाटर प्रूफ एंड पेनलेस ऑन रिमूवल। ये जो सारे हाइड्रोकोलोइड, हाइड्रोजेल, यू कैन सर्च द इमेजेस कि वो कैसे दिखते हैं। तो हाइड्रोकोलोइड आप यूज करोगे सो वो एब्जॉर्प्शन भी देगा, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, वुंड्स में जो भी ड्रेनेज हो रहा है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द वुंड, उसको प्रोटेक्ट करेगा, एंड सब एब्जॉर्ब करके डेब्रिटमेंट कर देगा वुंड का, सब जो गंदा डेब्रीज है वो रिमूव कर देगा। एंड इट इज अ वाटर प्रूफ। हाइड्रोकोलोइडल ड्रेसिंग आप यूज करोगे सो वो वाटर प्रूफ है, सो देर इज नो एनी चांस कि हाँ पेशेंट को पानी से आपको प्रोटेक्ट करना है। इट इज नॉट लाइक दैट। और जब भी आप रिमूव करोगे तो पेशेंट को पेन भी नहीं होगा। इट इज पेनलेस ऑन रिमूवल। कब क्लीन करना है, कब आपको चेंज करना है? सो क्लीन बेस है, जो ऊपर का बेस है, सो ऑन लीकेज ऑफ एक्सुडेट्स नॉर्मली वी नो कि इट इज वाटर प्रूफ, सो ऊपर का तो गीला होगा ही नहीं। बट आपको ऊपर का बेस कब चेंज करना है? कि जब नीचे का पूरा भर गया है और लीकेज हो रहा है, सो नाउ यू हैव टू क्लीन। अदरवाइज इफ देर इज नो लीकेज यू कैन कीप द ऊपर का लेयर वैसे ही रहने दे सकते हो। एंड जो नीचे का बेस है, नेक्रोटिक बेस, सो एवरी 24 आवर आपको क्लीन करना होगा बिकॉज उसने सब कुछ एब्सॉर्ब कर लिया है। नाउ वो पूरा डर्टी हो गया है, सो एवरी 24 आवर आपको वो अंदर का बेस चेंज करना होगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल, it provides absorption, protection and debridement, conductive to the use of topical agents। हाइड्रोजेल आप कैसे यूज कर सकते हो? सो जो भी आपको टॉपिकल जेल अंदर एजेंट्स यूज करने हैं, सो वो एक मीडियम है। हाइड्रोजेल की वजह से आप टॉपिकल एजेंट्स यूज कर सकते हो। इट इज अ मीडियम डिजाइन टू मेंटेन अ मॉइस्ट एनवायरमेंट। हाइड्रोजेल बनाई ऐसी गई है कि अंदर का जो एनवायरमेंट है वो ड्राई ना हो जाए, मॉइस्ट एनवायरमेंट मेंटेन कर सके। इट कंफर्म्स टू uneven wound surfaces but allows only partial wound visualization। Yes। ओके, सो वो सारी वुंड है जिसको जो अनइवन वुंड सर्फेसेस है ऊपर नीचे है तो उसको कंप्लीटली क्लोज कर देगा। बट अगर आपको वुंड देखना है तो पार्शियल, थोड़ा थोड़ा ही वुंड दिखेगा, कंप्लीट विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा। रिक्वायर्स अ सेकेंडरी ड्रेसिंग फॉर सिक्योरिंग। उसके ऊपर एक सेकेंडरी ड्रेसिंग लाइक गॉस पीस और बैंडेज से आपको कवर करना होगा। जो ऊपर का क्लीन बेस है वो एवरी 24 आवर चेंज करना है, नेक्रोटिक बेस एवरी 6 to 8 आवर चेंज करना है।
एडेसिव ट्रांसपेरेंट फिल्म, इफ यू आर यूजिंग एक ट्रांसपेरेंट जो फिल्म होती है, जो डायनाप्लास्ट और वैसी कैसे पिंक कलर की बैंडेजेस आती है, वैसी ट्रांसपेरेंट है, तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर पार्शियल थिकनेस लीजन एंड डेब्रिटमेंट एंड सर्व्स एज अ सेकेंडरी कवर ड्रेसिंग। यस, जो एडेसिव ट्रांसपेरेंट फिल्म है, सो पार्शियल थिकनेस लीजन्स हो गए, पार्शियल थिकनेस अगर स्टेज 2 का है तो उसमें आप यूज कर सकते हो, और जो भी डेब्रिटमेंट हो रहा है कि जो आपने अंदर का ड्रेसिंग यूज हुआ है, तो आप ऊपर जो ट्रांसपेरेंट फिल्म यूज कर रहे हो, जो चिपका रहे हो, वो सेकेंडरी ड्रेसिंग के लिए यूज होता है, जस्ट लाइक गॉस पीस। प्राइमरी भी आप गॉस पीस तो प्राइमरी भी कर सकते हो छोटे छोटे वुंड्स में, बट ये आप सेकेंडरी ड्रेसिंग में यूज करोगे। सो नीचे हाइड्रोजेल हाइड्रोकोलाइट जो भी जो आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर एडेसिव फिल्म आप चिपका सकते हो। इट प्रोवाइड्स गुड वुंड विजुअलाइजेशन, वो ट्रांसपेरेंट है, तो आपको पूरा वुंड दिखेगा, ट्रांसपेरेंट है इसलिए कंप्लीटली अंदर दिखेगा। इट इज वाटर प्रूफ एंड रिड्यूसेस पेन, ये वाटर प्रूफ है, ट्रांसपेरेंट फिल्म है, सो पानी भी अंदर नहीं जाएगा, इट इज वाटर प्रूफ एंड पेन भी नहीं होगा पेशेंट को। यूज इज लिमिटेड टू सुपरफिशियल लीजन। यस, जो सुपरफिशियल वुंड एजेस है उसमें ही हम यूज कर सकते हैं, जो डीप वुंड है उसमें हम ये यूज नहीं कर सकते ट्रांसपेरेंट फिल्म। इट इज नॉन एब्जॉर्बेंट, एडर्स टू नॉर्मल एंड हीलिंग टिश्यू, ये कुछ भी अंदर से एब्जॉर्ब नहीं करेगा बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट, प्लास्टिक जैसी फिल्म होती है, सो वुंड में से जो भी डिस्चार्ज ड्रेनेज आ रहा है सो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। गॉस पीस एब्जॉर्ब कर सकता है बट ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो इट इज नॉन एब्जॉर्बेंट। और ये चिपकेगा कहाँ पर, जो अच्छे नॉर्मल हीलिंग टिश्यूज है वहां पर चिपकेगा, अगर वुंड पर आप चिपकाओगे तो वहां पर नहीं चिपकेगा, उसको चिपकाने के लिए हेल्दी स्किन लगेगी, उस पर ही वो चिपक सकता है। ड्रेसिंग में भी डिफिकल्ट टू अप्लाई, और उस पर आप ड्रेसिंग नहीं अप्लाई कर पाते। फॉर एग्जाम्पल गॉस पीस पर आप मेडिसिन लगाकर वुंड पर डाल सकते हो तो वो हो सकता है, पर इस पर यू कैन नॉट अप्लाई एनी अदर टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग, इस पर नहीं लगा सकते। क्लीन बेस है जो ऊपर का, सो अगर लीकेज हो तभी चेंज करना है, अगर लीकेज नहीं हो सो इट कैन बी प्लेस्ड इन द पोजिशन, और जो नीचे का नेक्रोटिक बेस है वो एवरी 24 आवर आपको चेंज करना है। super absorbent material, so it minimize the adherence to the wound while collecting the exudate। नेम ही है सुपर एब्जॉर्बेंट, सो वो सब चीज एब्सॉर्ब कर लेगा, और जो एडर जो सारे वुंड में जो चिपक जाता है, गॉस पीस कैसे चिपक जाता है, सो इट डज नॉट स्टिक, इट मिनिमाइज द एडरेंस ऑफ द वुंड व्हाइल कलेक्टिंग द एक्सुडेट। वो सुपर एब्जॉर्बेंट है, अगर वुंड है इतना गड्ढा हो गया है और मैंने पेशेंट के वहां पर ये रख दिया है, सो वो वुंड की बॉर्डर्स पर चिपकेगा नहीं, बट सारा एक्सुडेट्स बहुत अच्छे से कलेक्ट करेगा। यूज्ड फॉर हेवीली एक्सुडिंग प्रेशर इंजरीज, ऐसी प्रेशर इंजरीज है जहां पर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, एक्सुडेट बहुत हैवी है, बहुत सारा सीरस ड्रेनेज निकल रहा है, सीरोसेंग्विनियस ड्रेनेज निकल रहा है, या फिर इन्फेक्टेड है तो बहुत सारा पस निकल रहा है, सो उसमें सुपर एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग मटेरियल लगेगा कि बहुत सारा एब्जॉर्ब हो सके as frequently as needed if it becomes wet with exudates। सुपर एब्जॉर्बेंट है इसीलिए हमने ये यूज किया बिकॉज डिस्चार्ज ज्यादा था, अगर आप गॉस पीस यूज करोगे तो 15-15 मिनट में गीले हो जाएंगे, पर सुपर एब्जॉर्बेंट यूज करोगे तो ज्यादा वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, पर जब भी गीला हो जाए तब आपको वो चेंज करना होगा। अंडरस्टूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग मटेरियल, यस और नो? Yes, Yes. या दिस इज फॉर योर नॉलेज कि कौन से मटेरियल का क्या होता है। इट मे बी और मे नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बट कौन से स्टेज में कौन सा ड्रेसिंग मटेरियल यूज होगा, इट इज टू रिमेंबर। इट मे बी आस्क्ड, इट इज नॉट लाइक दैट इट मे नॉट बी आस्क्ड, इट मे बी आस्क्ड कि पेशेंट को स्टेज 4 इंजरी है, सो व्हाट ड्रेसिंग मटेरियल डॉक्टर विल एडवाइज यू, तो आपको पता है कि स्टेज 4 में ये 3 यूज होते हैं, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसमें से कोई एक आंसर होगा। अंडरस्टूड? Yes. Okay, let's do a quick revision। आज हमने क्या देखा? So today we have started topic that is skin integrity। Skin integrity और pressure ulcer risk करने के लिए what is the main tool? Braden scale। Yes, Braden scale that is an assessment tool। इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रेशर अल्सर का रिस्क कितना है, जितना स्कोर ज्यादा होगा उतना रिस्क कम होगा, जितना स्कोर कम है उतना रिस्क ज्यादा है, जस्ट लाइक जीसीएस। जीसीएस में जितना स्कोर कम है इट इंडिकेट्स डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जितना स्कोर ज्यादा है उतनी कंडीशन पेशेंट की अच्छी है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग स्किन इंटीग्रिटी, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्किन इंटीग्रिटी अफेक्ट होती है? सो न्यूट्रिशन की वजह से स्किन इंटीग्रिटी अफेक्ट होगी, टिश्यू परफ्यूजन, इन्फेक्शन, एज, मेडिकल डिवाइसेस, इमोबिलिटी एंड इनकॉन्टिनेंस, दिस आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से स्किन इंटीग्रिटी अफेक्ट होगी। कौन से मेडिकल डिवाइसेस है दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। फिर वुंड क्लासिफिकेशन, कि वुंड कैसे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सो इट डिपेंड्स कि स्किन इंटीग्रिटी की स्टेटस क्या है, वुंड का कॉज क्या था, कितनी हद तक डैमेज हुआ है, कितना ऑनसेट और ड्यूरेशन था, उसके अकॉर्डिंग एक्यूट और क्रोनिक वुंड होगा, और कैसे हील हो रहा है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होगा। फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग हमने देखे। सो फर्स्ट इज नेचुरल प्रोसेस, सो उसमें कितने फेजेस होते हैं? 3, विच आर दे? Online students, which are these phases? Inflammatory, fibroblastic, And maturation. maturation. इन्फ्लामेटरी जैसे ही इंजरी होगी तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, और 3 से 5 दिन तक इन्फ्लामेटरी फेज ही चलता है। कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लामेटरी फेज है? तो देयर विल बी लोकलाइज्ड स्वेलिंग, दैट इज एडिमा, पेन, रेडनेस एंड वॉर्म। फाइब्रोब्लास्टिक फेज, जैसे इन्फ्लामेटरी फेज खत्म हुआ 4th दिन पर या 5th दिन पर तुरंत फाइब्रोब्लास्टिक स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेट, चलो हमने 4th डे काउंट किया, और वो 2 से 4 वीक तक फाइब्रोब्लास्टिक चेंज ही फेज ही चलता है। उसमें स्कार टिश्यू बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रेन्युलेशन टिश्यूज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर लास्ट स्टेज होता है मैच्योरेशन स्टेज। सो वो हमने देखा कि फाइब्रोब्लास्टिक फेज जो है वो 2 से 4 वीक तक चलता है, तो एवरेज हमने निकाल दिया कि 3 वीक तक चला है। तो आफ्टर 3 वीक्स मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होगा, और वो 1 साल तक रहेगा, बिकॉज नाउ देर इज अ स्कार फॉर्मेशन। स्कार धीरे 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 थीन होगा और वैनिश हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर। अगर बहुत ज्यादा वो इंजरी था, वैसा था, तो स्कार वहां पर ही रहेगा, बट पहले से स्कार थोड़ा कम होगा। Then healing by intention, we are doing something कि healing फटाफट हो। So first intention में क्या होगा? wound edges को आप suture लेके join कर दोगे, then जो normal healing process थी वो start हो जाएगी और wound जल्दी heal हो जाएगा। Second intention में क्या था कि wound थोड़ा deep था, injury थोड़ी tissue loss ज्यादा था, so there will be a requirement of feeling, उसमें feeling लगेगी, dead spaces और connective tissues की feeling लगेगी, उसके बाद वो naturally heal होगा। टर्शरी में क्या होगा? वुंड इतना सीवियर था कि आपको वो ओपन रखना पड़ेगा, रेगुलरली उसको क्लीन करना पड़ेगा, इरिगेशन, डेब्रीज रिमूव करने पड़ेंगे। एक बार वो सब रिमूव हो जाए, देन यू हैव टू टेक द सूचर्स, नाउ यू कैन टेक द सूचर, और अगेन वो फिर खुद से हील हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वुंड ड्रेनेज हमने देखे थे, कितने वुंड ड्रेनेज देखे हमने? 4. 4, विच आर दे? Serous, serosanguinous, and sanguineous and pleural. Yes, serous, serosanguineous, sanguineous and purulent. Which are normal discharge? Serous and serosanguinous. Yes, serous and serosanguineous are normal discharge. Sanguineous and purulent are abnormal. What are the assessment findings? Serous कैसा होगा? Clear. Clear, or it can be Stroke Stroke color color and water. watery होगा। Serosanguineous कैसा होगा? Pale pink Pale and pink watery। and watery. और sanguineous कैसा होगा? रेड ड्रेनेज होगा। Red drainage. सो अगर पेशेंट को सेंग्विनियस डिस्चार्ज हो रहा है, सेंग्विनियस एक्सुडेट आ रहा है, सो व्हाट डज इट इंडिकेट? ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है। यस। प्यूरुलेंट कैसा होगा? Yes, yellow different color. colors, yellow, gray, tan, brown, green. There will be different colors, and indicates there is an infection. Along with purulent exudate, there will be foul smelling, smell भी आएगी, foul smell भी आएगी, foul odor भी आएगी। Then we have seen pressure injuries. Pressure injuries क्या है? जो भी bony prominence है वहां पर होता है। So हमने अलग अलग पोजीशन, supine position में कौन से prominence थे, sitting position, sideline position, वो हमने देखे। What is our red important point? What is our primary role? Prevention, yes. Because अगर हो जाएगा तो heal करने में बहुत difficulty होगी. So it is prevention is our primary role कि उसको हुए ही नहीं. What are the risk factors? Pressure injuries क्यों होती है? तो हमने वो देखे risk factors कि pressure की वजह से, friction की वजह से, immobility, malnutrition, incontinence, sensory perception decrease हो गए. These are the risk factors. फिर हमने different stages देखे. I will ask you tomorrow कि stage 1 कैसे पता चलेगा, स्टेज 2 कैसे पता चलेगा, स्टेज 3
stage 4 unstageable and suspected deep tissue injury. Then as interventions हमने देखी. What is the red important point? Yes, online student, what is the red important point? Avoid રેડ સ્કિન હોય તો massage. મસાજ નહીં કરવાનું. अगर पेशेंट को रेड स्किन हो गया है, so डू नॉट मसाज दैट एरिया. मसाज करने से क्या होगा? कैपिलरी टिश्यूज, कैपिलरी बेड्स जो है, छोटी छोटी कैपिलरीज वो डैमेज हो जाएगी एंड टिश्यू ब्रेकडाउन होके नेक्रोसिस हो सकता है. देन वी हैव सीन डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स. या रेगुलरली पोजीशन चेंज कर सकते हो, प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस यूज करोगे, फ्रीक्वेंट स्किन असेसमेंट करोगे, कोई भी ऑल्ट्रेशन दिखेगा तब चेक करोगे, मॉनिटर करोगे. अगर इनकॉन्टिनेंट क्लाइंट है तो बेडशीट आप जो उसके पैड्स है उसको ड्राई रखोगे, पेशेंट की स्किन ड्राई रखोगे, व्रिंकल फ्री रखोगे, क्रीम्स, लोशंस, ल्यूब्रिकेंट्स आप यूज करोगे, एवरी 2 आवर पेशेंट की पोजीशन चेंज करोगे या फिर ज्यादा करनी पड़े तो ज्यादा करोगे, एवरी 8 आवर आप पैसिव और एक्टिव आरओएम प्रोवाइड करोगे. सो दिस आर द प्रिवेंटिव मेजर्स. नहीं हुआ है देन यू आर डूइंग. अगर हो गया है सो क्या करोगे? सो फर्स्ट कहाँ पे हुआ है, व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द साइज, कौन से स्टेज में है, वो सब आपको डॉक्यूमेंट करना है. अगर हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग फोटो लेना भी अलाउड है, सो फोटो भी लेना होगा, सब देखना होगा. उसमें से कैसा एक्सुडेट आ रहा है, सीरस, सीरोसैंग्विनियस, प्यूरुलेंट, कैसा एक्सुडेट निकल रहा है वो भी आपको नोट डाउन करना होगा. फिर स्किन असेसमेंट आपको करना होगा. ट्रीटमेंट करनी होगी डिपेंडिंग ऑन द स्टेज. स्टेज 1 है तो कौन सा ड्रेसिंग यूज करोगे, स्टेज 2 है तो कौन सा, 3 तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. और डिफरेंट मेथड्स भी है ट्रीटमेंट, like electrical stimulation, vacuum assisted wound closure, hyperbaric oxygen therapy, then topical growth factors. So these are the other treatments. आप dressing के साथ ये भी use कर सकते हो. Then we have seen different types of dressing material for different types of pressure injury. फर्स्ट में कौन सा ड्रेसिंग करना है, सेकंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा, फोर्थ में कौन सा, अनस्टेजेबल में कौन सा, एंड सस्पेक्टेड डीप टिश्यू में कौन सा. क्यों, व्हाट इज द मैकेनिज्म, वो भी हमने देखा. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग मटेरियल देखे कि ये ड्रेसिंग मटेरियल क्या कब यूज होता है और कब हमें चेंज करना चाहिए. So any doubt in this? Yes or no? No. Okay. No. So see you tomorrow at 9 a.m. Thank you.